السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایک سوال اکثر مجھے سننے کو ملتا ہے، میں اس کا جواب بھی دے دیا کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال آج آپ کی خدمت میں کچھ وضاحت سے عرض کروں کہ نفس اور شیطان انسان کے ساتھ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو میں ہر پل اللہ کی راہوں سے جدا کروں، اور شیطان کی راہیں تو ہر وقت تیار ہیں. تو اس کی شیطان کی اور نفس کی یہ اندر کی کوشش اور کشمکش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ بندہ جو اللہ جل شانہ کا راستہ لے کر چل رہا اس راستے سے ہٹ جائے. اس کے لیے طرح طرح کے وسوسے، عجیب و غریب خیالات، تصورات، کیفیات. ایک وسوسہ یہ آتا ہے کہ تیرے وظیفے کے پڑھنے کا تجھے کیا فائدہ پہنچا، اتنے لاکھ تو نے تسبیح پڑھ لی، اتنے لاکھ وظیفہ پڑھ لیا، اتنے ہزار پڑھ لیا، اتنے عرصے سے چل رہا. کیونکہ آخرت اندیکھی ہے اور دنیا دیکھی ہے، اس لیے یہ آخرت کو سامنے نہیں رکھتا، دنیا کو سامنے رکھوا کے اس سے موازنے کرواتا ہے، کمپیریزن کرواتا ہے کہ تو اتنے عرصے سے کر رہا، تجھے ملا کیا فائدہ پہنچا؟ کچھ بھی. میں نے ایک بندے سے کہا کہ اس کی بیوی پہ جن آتا تھا. میں نے کہا جن سے کہنا حکیم طارق کہتے ہیں تیرا شکریہ، آتے رہنا. یہ بڑے عجیب انداز سے دیکھا. کس لیے؟ میں نے کہا کہہ دینا، یہ بعد میں سمجھ آئے گی. کچھ عرصے کے بعد پھر ملا تو میں نے دیکھتے ہی پہچانا، اور میں نے خود اس سے کہا، میں نے کہا اس جن سے کہا تھا جو تیری بیوی پہ مسلط تھا اور آتا تھا؟ ہاں جی. میں نے کہا کیا کہا تھا؟ کہ آپ کا نام لے کے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا. کہنے لگا وہ خود حیران ہوا کہ اس نے شکریہ ادا کیوں کیا. کہنے لگا یہی سوال اس نے پوچھا اور وہی میں نے پوچھا. اس سے باتیں کرتا تھا اور اس کو عجیب غریب چیزیں بھی لا کے دیتا، بے موسم کی چیزیں، ادھر کی چیزیں، ادھر کی چیزیں، پیغامات وغیرہ وغیرہ. بلکہ یہاں تک کہ میری مامی رہتی ہے فلاں جگہ، اس کو دیکھ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے، وہ آ کے بتاتا تھا، موبائل میں بتاتا، مامی تو یہ کر رہی ہے، یہ کھا رہی ہے. وہ کہتی تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ ہے وہ بھیڑیا، مامی بھیڑا کہہ کے کہتی تھی، ہے وہ بھیڑیا تینوں کہ یہ پتہ چل گیا. اور کہتی مامی میرا جو بیوی والا جن ہے نا وہ مجھے بتاتا ہے. اس سے کہا کہ تیرا شکریہ، جس کو کہتے ہیں نا غم عاشقی، تیرا شکریہ. یہ غم عاشقی ہے، غم ہے، غم کو کہا تیرا شکریہ. اب جن کو بھی تجسس، انسان کو بھی کہ یہ طارق کہتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرنا. پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تیرا شکریہ اس لیے کہ جن بابا تو آیا تو ان کو اللہ کا نام نصیب ہوا. اگر تو نہ آتا تو یہ غفلت کی آخری انتہا تک کہ پتہ نہیں رب کے وجود کے قائل تھے یا نہیں تھے. ہاں، جو ان کی عقائد، نظریات، باتیں میں نے سنی، وہ تو پتہ نہیں کوئی بھٹکا ہوا جن کہیں سے آ گیا اور اس نے آ کے ان کو اللہ کی راہوں پہ لگا دیا، بیوی کی تکلیف کے نام پہ، بیوی کی گرفت اور گرپ کے نام پہ. اور ان کو کہاں سے کہاں اس جن نے پہنچا دیا. تو وہ تو اس جن کا شکریہ. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ ڈینگی آئے کبھی کبھی پھیرا پائے،
बंदे ना ले जाए, लेकिन हमें आके थोड़ा सा झंझोड़ जाए कि ये मच्छर आ गया, अब उसके बचाव के लिए कोई वजीफे पढ़ रहा, कोई घरों के बाहर आयतें लिख रहा, कोई लफ्ज पढ़ रहा, कोई तस्मीयां पढ़ रहा, कोई क्या कर रहा, कोई अपने बाजुओं को पूरा ढांक रहा। जगह जगह हुकूमत ने भी लिख के लगाया। एक चीज जो मैं बात कर रहा था, एक वसवसा जो दिल में आता है अक्सर, वो ये आता है कि तस्बीह से क्या बना? तेरा मौशी निजाम, कारोबारी निजाम कमजोर था, वो तो वैसे रहा। तेरा बेटा नहीं था, औलाद नहीं थी, वो तो नहीं हुई। तू बहुत बड़ी सवारी और गाड़ी चाहता था, वो ना मिली। तू अपने कारोबार में बहुत सेल और तरक्की चाहता था, वो भी ना हुआ। किसी किसी की बात कर रहा हूं, हर किसी की नहीं। अगर सबको ना मिलता तो आज तस्बीह खाने में कोई ना बैठा होता। ये अल्लाह देता है अपने नाम की बरकत से, जो तस्बीह खाने में बैठने की जगह नहीं मिलती। एक सवाल है जो मुसलसल ये अंदर के वसवसे आते हैं कि इतने अरसे से किया, क्या पाया? छोड़, न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूजे। छोड़ इस जिंदगी को। असल में आखिरत अनदेखी और दुनिया देखी। अब जो अनदेखी आखिरत है उसका इससे पता चलता नहीं। देखी दुनिया है, उसको सामने रखता है, सामने रख के फिर तजर्बे करता है, सामने रख के सोचता है, सामने रख के तज्जिए करता है और सामने रख के फिर फैसले करता है इस दुनिया को। क्योंकि दुनिया की जरूरियात जो है अल्लाह ने साथ लगा रखी है। एक पेट वाला बच्चा, एक गोद वाला बच्चा, तो मां को ज्यादा फिक्र किसका? गोद वाले का। पेट वाला तो अंदर पल ही रहा, जो गोद वाला है उसका फिक्र मां को होता है। अब ये एक गलत फहमी है ऐसी जो अक्सर दिल में होती है। माशरा भी कहते हैं, देखा नहीं तेरी तस्बीह हर वक्त चलती रहती है, क्या पाया तूने? ये माशरा नहीं कहता, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये उनके दिल में डालता है, जुबान पे लाता है। बज़ाहिर इंसान बोल रहा, असल में शैतान बोल रहा। बज़ाहिर इंसान बोल रहा, एतराज की शक्ल में, मजाक की शक्ल में, बज़ाहिर इंसान बोल रहा। इंसान कहता है, क्या किया तुमने? इतने अरसे से नेकी की राहों पे चल रहे, क्या पाया? बात वक्त मां कहती है, बीवी कहती है, बेटी कहती है, बेटा कहता है, सारा घर चलो निस्बतों से अगर जुड़ा हुआ है तो बाहर का कोई बंदा कह देता है, दोस्त, क्या पाया, क्या हासिल किया? ये एक ऐसा सवाल है जो आपके दिल में भी उठता है, मेरे कानों में भी सुनाई देता है और बहुत ज्यादा इस सवाल की गर्दिश में सुनता देखता रहता हूं। एक ऐसा सवाल है, यकीन जानिए इसका जवाब बहुत जबरदस्त है और हमारे फायदे के लिए है। इसका जवाब हमारे नफे के लिए। हम इस जवाब को अगर सोचें तो बाग बाग हो जाए। हाँ, ये बताएं कि फसल कोई लगाता है, दरख्त कोई लगाता है, सारी जिंदगी उस बाग की सेवा करते, मेहनत करते, वो बाग खजूरों का है, किन्नू का है, आमों का है, किसी भी चीज का है, जामन का है, सेवा करते करते बाज़ औक़ात जो बाग लगाता है वो उसका फल नहीं पाता, लेकिन क्या नस्लें फल पाती हैं? नस्लें फल पाते हैं। ये बात कहें तो कहा बात ठीक है, समझ आती है। बाज़ औक़ात बंदा मेहनत करता है सारी जिंदगी, अपनी जात पे, अपनी जान पे खर्च नहीं करता, लेकिन नस्लों के लिए इतना सरमाया छोड़ जाता है कि वो नस्लें उसकी बहुत ज्यादा दिल से खाती भी हैं, पीती भी हैं और ऐश करती हैं। मैं एक मिसाल अक्सर दरबारों के गद्दी नशीनों की इसलिए दिया करता हूं कि हमें ये मिसाल बड़ी अच्छी तरह समझ आती है। बड़ी बड़ी दरबारों के गद्दी नशीन
आज तक उन्होंने कोई झाड़ू नहीं दिया, कोई मजदूरी नहीं की, कोई मेहनत नहीं की, कोई चाय का कप नहीं धोया, कुछ भी नहीं किया। पल रहे, ऐश कर रहे, और अल्लाह ने दिया है और उनको मिलेगा। और अगला लफ्ज मैं अक्सर कहा करता हूं, माल अल्लाह इन्हें देगा, ये फिर इनकी अपनी सवाबदीद है कि इसको खैर में खर्च करें या शर में खर्च करें। रब के वादे हैं पालने के, और जो वादा है रब का सच्चा होता है, और रब पाल के दिखाता है। रब पालता है और पाल के दिखाता है, उसका वादा सच्चा होता है। इसकी वजह यह है, अब इनके जो बड़े हैं उनकी हिस्ट्रियां उठाएं, उनकी तारीखें उठाएं, तो आपको पता चलेगा कि पैबंद लगे कपड़े थे, एक झोंपड़ी थी, गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, फक्र था। और जो मौजूदा है उन्होंने पैबंद लगे कपड़े आज तक देखे ही नहीं है। शायद उनका सूट कितने दिन चलता होगा, उसके बाद बदल जाता होगा। मैं एक बहुत बड़ी दरबार के गद्दी नशीन के घर गया, जहां पहले दिन का बच्चा भी नहीं जा सकता। बेटा है, अगर पहले दिन का है, एक दिन का बेटा है, तो जनान खाने में घर के अंदर वो बच्चा नहीं जा सकता। औरत जा सकती है, बेटा नहीं जा सकता। मैं घर में गया इसलिए कि वहां जिन्नात का हमला था। यकीन जानिए, मैं कमरे पे कमरा मैंने देखा, कमरे खत्म ही नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान का बहुत बड़ी गद्दी है, बहुत बड़ी दरबार है, उसके जो गद्दी नशीन थे, मैं उनके घर की बात कर रहा हूं, कमरे खत्म नहीं हो रहे थे। और हर कमरे में अजीबो गरीब चीजें ही चीजें थी, पता नहीं कहां से आई, चीजें ही चीजें, और ब्रीफकेस भरे हुए चीजों से। और कुछ एक दो कमरे मैंने ऐसे देखे जहां ब्रीफकेसों की ऐसे ढेर लगा हुआ और उन पे मिट्टी जमी हुई, जो इस बात का एहसास दे रही थी कि इनके अंदर सामान इतना है कि इनको पता ही नहीं, खबर ही नहीं, और मिट्टी और धूल बता रही है कि ये कितने अरसे से खुले ही नहीं है। उनके बड़ों ने तस्बीहां की थी, उनके बड़ों ने नेकियां की थी, उनके बड़ों ने रिज़्क़ के हलाल की मेहनत की थी, उनके बड़ों ने मखलूक खुदा की खैरखाही चाही थी। वो मखलूक खुदा हर फिरके की, वो मखलूक खुदा हर मजहब की, वो मखलूक खुदा हर रंग की, वो मखलूक खुदा हर नस्ल की, वो मखलूक खुदा फकीर, अमीर, गरीब, बदकार, गुनाहगार, उन्हें सबकी खैरखाही चाहिए थी। आज उसका सिला यह मिला कि खुद तो सफेदपोशी, गुर्बत, तंगदस्ती और फक्र में जो मिलता था वो लंगर गुरबा, फुकरा, मसाकीन को खिला देते थे, और खुद गरीबी में, और उसका सिला जो तस्बीहां पढ़ी, जो वजीफे किए, जो अमाल किए, जो हलाल के लिए मेहनत की, और जो अल्लाह की मखलूक की खैर खाई चाही, उसका सिला यह मिला कि उनकी नस्लें ऐश भी कर रही हैं और पल भी रही हैं। क्या यह सच है? क्या इस सवाल का जवाब यह नहीं है कि तू कहता है कि मेरी तस्बीह से क्या होगा? जाग रहे? तू कहता है मेरी तस्बीह से क्या होगा? तुझे कहा जाता है, कभी अंदर से आवाज आती है। मुझे कई बंदों ने कहा, उसने कहा जी आपने इतना वजीफा किया तो कहा था, मैंने इतना पढ़ लिया, छोड़ दिया, इतने तो काम मेरे बन गए, वो एक काम मेरा नहीं बना, फिर मैंने छोड़ दिया। कितना छोटे दिल का है, छोटे बर्तन का है। मैं चाहता हूं अल्लाह इस नाम, अपने नाम की बरकत से इसकी 7, 14, 21, 41 क़यामत तक की नस्लें पले, ये अपने आप को पालने में लगा हुआ है। कह रहा है छोटा बर्तन लेके चला है, छोटा बर्तन लेके चल रहा है, बखील है, सखी नहीं है। आने वाली नस्लों को फक्र, फाका, गुर्बत, खुद ऐश कर, निजाम को लपेट, मूछों को बल दे, चल जा तू जा। उनके लिए सोच, नस्लों के लिए सोच, जिसे अक्सर मैं अर्ज किया करता हूं कि अपनी नस्लों को फाके दे के ना जाना। गरीबी फकीरी अल्लाह के हाथ में है,
लेकिन अल्लाह ने असबाब तो बनाए हैं बरकत वाले अमाल, जिसे मैं कहा करता हूं। ये कहता है कि बस मैं तक रहूं, यहां तक रहे सिलसिला, उसके बाद देखी जाएगी। मैं कहता हूं नहीं, अमाल कर, तुझे बज़ाहिर उसका दुनियावी नफा नजर नहीं आ रहा, पर न छोड़, तो हो किसी भी हाल में मौला से लव लगाए जा। और मुझे उस दिन एक साहब का पैगाम मिला, उन्होंने कहा कि तस्बीह खाने में आया, वो कहते हैं कि मैं खुदकुशी करना चाहता हूं। मैं कहा उसको कहे कर ले, जब जिस दिन करना हमें बता देना, हम दुआ कर देंगे तेरे लिए। कह ले वापस आ गया। खुदकुशी कर रहा हूं, वरना हकीम तारिक से मिलवाऊं, मुझे बात कराओ, जल्दी करो, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। हालांकि एक दफा नहीं, कई दफा मुलाकात कर चुका, कई दफा। वो कहते हैं आप छोटे छोटे जो वजीफा बताते हैं ये ठीक है, पर कोई ऐसा बताए कि जमीन में से देग निकले, कोई देगी वजीफा बताए, देगी वजीफा, कोई ऐसा देगी वजीफा बताएं कि मेरा दादा जो है वो भी ऐन के बनाता था, मैं भी बनाता हूं, एक पल में ऐसे देग निकले और हम यूं शं करके आए, और मैं जो देखूं सामने सोने की अशरफियां हों और मैं उससे खेलूं। आपने एक चीज नहीं देखी, बिल्ली चूहे को मार के पूरा नहीं मारती ना, कभी पूरा नहीं मारेगी, उससे खेलती है। वो फिर ऐसे उसको इतना मुआ कर लेती है कि भाग ना जाए, है समझदार, आध मुआ कर लेती है, वो भाग ना जाए लेकिन उसमें सांस बाकी हो। क्योंकि मेरा बिल्लियों से राब्ता बहुत पुराना है, तो उसको भी खेलती है, उठा के ऐसे ऊपर फेंकेगी, नीचे फेंकेगी, ऊपर फेंकेगी। हमारे वालिद साहब के यहां एक होता था हिंदू, जूतियां गांठता, अब भी है, उससे मिलने जाता हूं, उसको हदिया भी देता हूं। हरु राम, उसके बेटे का नाम जो है मांगू राम, उसके बेटे का नाम सूरज राम, तीरथ राम, उनके यहां मैं जाता हूं मिलने, और उनको मैंने या हादी या रहीम का वजीफा भी दिया हुआ है, पढ़ते हैं, दिल तो अल्लाह के कब्जे में। तो वो एक दफा ऐसा हुआ, मैं गया, मैं छोटा सा था, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, तो 100 का नोट होता था, उसने ना 100 का नोट चारपाई के ऊपर बिछाया, सारा ऊपर बिछा के ऊपर चादर बिछाई, सारी रात उसके ऊपर सोया। और ये तो मैंने देखा। अगला तासुर उसने वालिद साहब से कहा, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे, उन्होंने फरमाया, मैंने अगली बात जो अपने अब्बा जी रहमतुल्लाह सुनी, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मुझे कहने लगा कि आज रात मुझे इतनी सुकून की नींद आई और इतनी चैन की नींद आई, आप भी कभी नोटों पे सो के देखें, बड़ी सोहनी नींद आती है। वो दीवाना था, नोटों पे कभी सुकून की नींद नहीं आती, लगता है उसके पास थोड़े से थे, उसी से खुश हो गया। तो मुझे कहने लगे कि वो कहते कि मैं खुदकुशी कर लूं, मैं करने दो उसको, कर ले, जब खुदकुशी का वक्त है बता देना, हमें डेट लिखवा देना। वो हम देगी वजीफा मांगता है मुझसे। वजीफों की किस्में है ना, एक देगी वजीफा होता है, देगी चावल, देगी पुलाव, देगी कोरमा होता है ना, मुंह के पानी को संभाल के रखिएगा। तो देगी वजीफा मांगता है, ऐसे देग निकले और उसमें सोने की शफियां हो, और फिर मैं यूं करके खेलूं उससे, और उसकी बारिश हो मेरे ऊपर। यकीन जानिए, मेरे रब का नाम लिया हुआ कभी खसारे में नहीं गया, रब का नाम लिया हुआ कभी घाटे में नहीं गया। मेरे रब की हर कॉल रिसीव कॉल है, मेरे रब की कोई कॉल मिस कॉल नहीं है। या मेरा रब यहां देता है, या तेरी नस्लों को देता है, या फिर कुछ भी ना हो तो आखिरत में इतना कुछ तैयार करके रखा होता है और रखा हुआ है कि बंदा कहता है काश मेरी दुनिया में कोई एक दुआ भी कबूल न होती और मेरा जिस्म कैंचियों से काटा जाता, इतनी मुझे तकलीफ दी जाती है। रब बड़ा गयूर है, गैरत वाला है। जिस रब ने
इंसान को और हत्ता के जानवर तक को गैरत दी है, छोटे से मासूम बच्चे को गैरत दी है कि इसने मुझसे ये चीज क्यों छीनी है, उसको जाके मारे। या मासूम बच्चा गुस्से में आके जमीन पे टक्कर मार देता है, अपना माथा मार देता है। वो प्राउड मुतकब्बिर नहीं होता, इसके अंदर वो एक जज्बा गैरत होता है। जिस रब ने ये दिया वो रब खुद कितनी गैरत वाला है। वो बंदे की थोड़ी सी मेहनत को लौटाता है और बड़ा बना के, और थोड़ी सी कोशिश और काविश को वापस देता है। और ये नहीं कि बंदा कुछ मेहनत करे और कुछ कोशिश करे और मेरे रब उसकी मेहनत को जाया कर दे। ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह कहता है मैं अपने मोहसिन, हालांकि अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अल्लाह इस बंदे को अपना मोहसिन कह देता है कि मेरे मोहसिन तेरे अजर को मैं ज़ाया नहीं करूंगा, तुझे लौटाऊंगा और बार बार लौटाऊंगा, और तुझे दूंगा और बार बार दूंगा। इसलिए कहते हैं जब बंदा जमीन पे अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह अर्श पे बंदे को याद करते हैं, और बंदा जमीन पे बंदों की महफिल में याद करता है और मेरा रब फरिश्तों की महफिल में उसको याद करता है। कितना खुशकिस्मत इंसान है, कितना खुशकिस्मत इंसान। हत्ता के क़यामत के दिन मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बंदे का नाम लेके पुकारेंगे और ये बंदा हैरान होगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम आपको कैसे याद है? आपने फरमाया हर रोज तो दरूद भेजता था मुझ पे, दरूद और सलाम, और तेरे वालिद के नाम के साथ मेरे रोज़ा अत्थर पे वो दरूद मुझे पहुंचाया जाता था, तेरा नाम तो उसी दिन से मुझे याद है। दरूद और सलाम तेरे वालिद के नाम के साथ मुझ तक पहुंचाया जाता। कभी ना सोचें कि मेरी तस्बीह काम नहीं बना, मेरी तस्बीह फिरी, मैं नहीं बदला, या मैंने अपने आप को वक्त का जुनैद बगदादी बनाना था, मैंने आपके आप को वक्त का अली हजवेरी बनाना था, मैं नहीं बना। क्या फायदा इस तस्बीह का, और क्या फायदा इस तस्बीह खाने का? कभी ना सोचें, कभी गुमान ही ना करें, बल्कि ये ज़हन में रखें कि मौला तेरा शुक्र है मेरी जुबान को तूने इस काबिल बना दिया, तेरी कबूलियत है, मैं काबिल नहीं था। अल्लाह पाक जल्ल शानहू, याद रखिएगा मेरी बात को अल्लाह वालों, मेरा अल्लाह किसी बंदे की जुबान पे अपना नाम दे दे, सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा करम है। हत्ता कि या अल्लाह तेरा शुक्र हो, या अल्लाह तेरा एहसान, अगर इतना लफ्ज भी आ जाए तो समझ ले कि अर्श पे पहले अल्लाह ने इसको याद किया है तो जमीन पे इसने अल्लाह को याद किया है। हाँ, यादों की यादें होती हैं, बल्कि यहां तक यहां ज़हन में रखिएगा तेरा जिक्र सदाए बाज़गश्त है। जैसे खुला हॉल हो और उसमें आवाज ले बंदा तो वही आवाज लौट के वापस आती है। ये ऊपर से तस्करे हुए हैं तेरे जो मेरे रब ने तुझे तौफीक दे दी है। तुझे क्या खबर, मुझे क्या खबर कि इतना जिक्र, इतनी तस्बीह, इतनी नेकी, इतने अमाल और इतने गुनाहों से बचना ये मेरे अपने कमाल से है, ये मेरी अपनी फुर्तियों से है? नहीं नहीं नहीं। कई लोग मुझे आके कहते हैं साल है साल जिंदगी गुजारी, इतना आज तक सोचा नहीं था कि हमारा नजरिया, हमारा जहन, हमारा दिल, हमारी सोचें, हमारे जज्बे, हमारा विजदान कभी ऐसे बदल जाएगा। कभी सोचा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था। और हम इतना जिक्र कर लेंगे, कभी सोचा ही नहीं था। हम इतनी तस्वीर पढ़ लेंगे, कभी गुमान ही नहीं किया था। मुझे अक्सर एक बात पे बड़ा दुख होता है, ऊपर रब है नीचे आप है, वो बड़ा तबीयत खराब होती है। एकदम मैं अपने बारे में इस्तिग़फ़ार शुरू कर देता हूं दिल में, ऊपर रब है नीचे आप है, मैं कौन, मेरी क्या औकात है? रब है, बस रब है। लोग कहते हैं मुझे, और मुझे बड़ा दुख होता है और तकलीफ होती है।
मैं नीचे मैं वो है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। कभी अपनी जिंदगी को मायूसी में न लाइएगा। ये मेरा पढ़ा मेरे काम न आया, ना ना, मैं वकील था तो मैं जज न बन सका, मैं फला अफसर न बन सका, मैंने बड़ी दुआएं मांगी। दुआएं रंग लाती हैं, दुआओं के पर नहीं होते पर परवाज होती है। दुआओं का रंग नहीं होता पर असर होता है। कई बंदे मेरे पास आए कि हमारा फला जगह शादी की तरतीब थी, हमने जो नफल पढ़े, जो तस्बीहां पढ़ी, जो वजीफे पढ़े, वहां शादी न हुई। लेकिन आज पता चला कि अगर हो जाती तो क्या बनता, और उसके सिले में रब ने यह अता किया, उससे बेहतर अता की। मेरा रब है हकीम, सारी हिकमतों दानाइयों का जानने वाला। बच्चा खिड़की से बाहर सर निकालता है और कहता है नजारे देखूं, मां खींच के अंदर करती है कि सर पे कोई चीज न लग जाए। अब मां से उलझता है, रोता है, वो कहते हैं मुझे बाहर सर निकालने में मजा आ रहा। मैं कहते हैं ना, बाजू ना निकाल, सर ना निकाल, खिड़की से नुकसान हो जाएगा, कोई चीज लग जाएगी। बंदा कहता है कि ये काम मैंने करना है, अल्लाह कहते हैं ना, तेरा फायदा नहीं, तुझे फ्यूचर का पता नहीं, मुस्तकबिल का पता नहीं, बाद में क्या होने वाला है, ठहर जा भी यही। बंदा कहता है मुझसे नेमत छीन ली गई है। मेरा अल्लाह कहता है तू इस काबिल था कि तुझसे छीन लूं, अगर मैं नाराज हो जाऊं तुझसे ये नेमत दे दूं तो तेरा कुछ बचना कुछ नहीं है। और बाद में एक वक्त आता है, बंदा कहता है अपने दिल से, मौला सच है, तू सच्चा, तेरा निजाम सच्चा, मुझे खबर नहीं थी, आज अगर ये चीज होती तो मेरा क्या बनता। कारून के खजाने को देख के सारा जहान कहता था कि इतना खजाना, लोग रश करते थे। कारून के खजाने जिसकी चाबियां ऊंटों की एक जमात उठाती थी, इतनी चाबियां थी, ऊंटों की ऊंट उठाते थे चाबियां, खजाना कितना बड़ा होगा। जब कारून अपने खजाने समेत घुसा, वही लोग जो कहते रश करते थे इबरत करने लगे, शुक्र है हमारे पास नहीं था। आप ये न सोचिएगा कि आप दौलतमंद हो गए तो आपको कोई माफ कर देगा। दुनिया के दौलतमंद हमारे सामने करतबा चौक और जेल रोड की फुटपाथों पे नहीं सो सकते। ये जो जेल रोड पे फुटपाथों पे सो रहे हैं, इनकी जेब में कुछ नहीं होता। अगर यही लोग हैं जब इनकी जेब में कुछ आ जाता है, दौलत नींद छीन लेती है, दौलत तन्हाइयां छीन लेती है, ये फिर फुटपाथों में न सोए। आपके पास जो रूहानी दौलत है, कौन सी? इंसानियत की खिदमत के नाम पे, इंसानियत की खैरखाही के नाम पे ये रूहानी दौलत है। हर रंग, हर इंसान के लिए खैर सोचना, उसके लिए भलाई सोचना, ये आप मालदार हो रहे हैं। मेरी जात से किसी को नफा मिल जाए, चाहे वो सलाम के नाम पे क्यों ना हो, मैं सलाम कर दूं, ये नफा दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, ओ भाई तू मुसीबत में मुब्तला है, तुझे बीमारी है, तुझसे सलामती छिन गई है, तेरी टांग में दर्द है, सलामती छिन गई है, तेरा घर टूटा हुआ है, मियां बीवी उलझाए है, तेरी सलामती छिन गई है, तेरा कारोबार जवाल में है, तेरी सलामती छिन गई है, तेरी फसल सही नहीं हो रही, सलामती ले, मैं तुझ पे सलामती देता हूं अल्लाह की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। ये खैरखाई के बोल हैं, ये खैरखाई के बोल हैं। इंसानियत को मेरी जात से नफा मिल जाए। कोई टोटका मेरे पास था, रूहानी या तिब्बी या जिस्मानी, या मैंने इंसानियत के लिए भला सोचा, कोई लड़े हुए थे उनको आपस में सुलह करा दी, कोई नफरतें थी उनमें पानी डाल दिया, तेल डालने की बजाय, पेट्रोल डालने की बजाय। ये सारी चीजें मुझे मालदार बना रही हैं, ये सारी चीजें मुझे मालदार बना रही, और मैं मालदार होता चला जा रहा हूं। फिर तस्बीह के नाम पे मालदार, फिर वजीफे के नाम पे मालदार, फिर सदके के नाम पे मालदार, फिर ज़कात पूरी अदा की गिन के मालदार, उशर पूरा अपनी जमीन का फसल का तोल के पूछ के अदा किया, मैं मालदार होता जा रहा हूं।
پھر اضافی صدقہ دیا کسی غریب مستحق کی. سب سے پہلے رشتہ داروں پہ وبذل قربا، سب سے پہلے رشتہ داروں پہ میں نے توجہ کی. ایسے رشتہ دار جنہوں نے مجھے محروم کیا تھا، میں غریب تھا، انہوں نے مجھے ذلیل کر دیا تھا. آج میں امیر ہو گیا ہوں، وہ غریب ہو گئے ہیں. اب میرا برتن دیکھو میں کیسے ہیں، میں نے ان کو عطا کرنا ہے. جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر. ہاں میں اب ان کو عطا کروں گا. یہ اب آپ مالدار ہوتے جا رہے ہیں، روز بروز مالدار ہوتے جا رہے ہیں. اس نے تیرے بخار پہ تجھے نہیں پوچھا تھا، تو نے اس کی چھینک پہ ان سے پوچھ لیا خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی. یہ آپ مالدار ہوتے جا رہے ہیں. کبھی تسبیح کے نام پہ، کبھی سجدوں کے نام پہ، کبھی اعمال کے نام پہ، کبھی صدقے کے نام پہ، کبھی اللہ کی مخلوق کی انسانیت کی خیرخواہی کے نام پہ آپ مالدار ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ مال بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ کہیں مال بھی بڑھتا جائے اور چور بھی نہ آئے، کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن؟ تو ایک صاحب ہے، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. مجھے اکثر آتے اور کہتے کہ ایک سودا چل رہا ہے، اس کے لیے آپ دعا فرما دیں. میرے منہ سے نکل جاتا اللہ خیر کرے گا. اکثر کہتے کہ سودا ایک چل رہا ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں. ایک دن میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے جی کہ گھاٹا ہو گیا، آپ کو دعاؤں کے لیے بھی کہا تھا، گھاٹا ہو گیا. اچھا، میں نے کہا میں نے تو کہا تھا اللہ خیر کرے گا، گھاٹا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے جی ہم 3 دوست ہیں، فلاں فلاں فلاں، ہم نے پیسے اکٹھے کیے، بہترین سوٹ بنوائے، بہترین جوتے، پھر ایک پراڈو ہم نے کرایہ پہ لی، ایک بندے کی راکھی کی، اس کو روا برائے تاوان کرنا تھا. سودا ہو رہا ہے اور مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہا ہے. میں کہتا اللہ خیر کرے گا. یہ سچ واقعہ بتا رہا ہوں، بالکل اوریجنل. ایک بندے کی ہم نے اس کی ٹوہ لگائی، گاڑی پیچھے رکھی، کہاں جاتا ہے، کس طرح جاتا ہے، کیسے جاتا ہے. کہنے لگے 5 کروڑ کا بندہ تھا، ہم نے اس سے 5 کروڑ ڈیلنگ کرنی تھی، آخری 5 کروڑ لینے تھے، اس کو اغوا کرنا تھا. آپ سے دعاؤں کی بڑی درخواست کی کہ ایک سودا چل رہا ہے. سودا تھا اس کا نا، اس کی ڈیل تھی. پر ہوا یہ کہ وہ بندہ پتہ چلا اچانک بیرون ملک چلا گیا اپنے بزنس ٹور پہ. کہنے لگے ہمارے سوٹ، ہماری جوتیاں، ہماری گاڑی، اچھی گاڑی لی ہوئی، یہ سارا کچھ ہمارا نقصان ہو گیا. اور بڑا پریشان بیٹھا تھا بیچارہ، سودا خراب ہو گیا. آپ کو دعا کے لیے بھی کہا تھا نا. وہ ایک درویش تھے لقمان صاحب، وہ کہتے ہیں چندہ دینے والے بھی عجیب ہیں. اگر رنڈی چندہ دے کہتے ہیں اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے، اس کو بھی کہتے ہیں تیرے کاروبار میں برکت دے. تو میرے منہ سے تو اللہ نے بس قدرتی نکلوا دی اللہ خیر کرے گا. تو خیر تو اسی میں تھی، وہ بندہ چلا گیا، اسی میں ہی خیر تھی اس بیچاری کی، اور ان کی بھی اسی میں خیر تھی کہ جو کچھ تھا چلو کھٹیا وٹیا سارا لگ گیا، کچھ دن تو سکون سے گزریں گے. ہمارے پاس سرمایہ ہو اور ہم کہیں کہ کوئی چور ہمارے پیچھے نہ آئے، کوئی لٹیرا نہ آئے. مختلف شکلوں میں آئے گا، کبھی وسوسوں کی شکل میں، کبھی شک کی شکل میں، کبھی بدگمانی کی شکل میں آئے گا، اور ضرور آئے گا. اور آ کے ہمیں دور کرنے، اس منزل سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. پر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر اس سفر میں قدم رکھا ہے، یہ قدم قدم بنائیں، یہ سودا یہ کوئے جانا. جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہ قدم قدم بنائیں. ہر وقت پریشانی ہوگی، کیا بنے گا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا.
یہ सौदाए कुए जाना, ये यार की गलियों की दीवानगी, और कोई खबर नहीं इधर जाऊं या इधर जाऊं, या दलील अल मुतहय्यरीन। ये कहते हैं मौला मेरा रहबर बन जा, मैं मुतहय्यर हूं, ऐसे देख रहा हूं, आंखें फटी हुई है, मेरी आंखें फटी हुई है, मुंह खुला हुआ है, और मेरा कोई रहबर नहीं है, मेरी कोई उंगली पकड़ने वाला, मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। मौला तुम मेरा दलील बन जा। दलील कहते हैं रहबर, गाइड। हमें कुछ समझ के संभल के चलना है। अगर इतनी बड़ी दौलत पाली है, दौलत को संभालना पड़ेगा, वरना कभी अंदर की सोचे और कभी बाहर की सोचे, कभी अंदर का जहन कभी बाहर का जहन हमें फिसला देगा, हिला देगा। क्या पाया, क्या हासिल किया, क्या मिला, क्या लेने आया था, सिर्फ दुनिया को मरकज बनाएगा। दुनिया के मसाइल, बीवी, बच्चे, औलाद, कारोबार, मुकदमा, बेटे, बेटियां, शादी, रिश्ते, इन चीजों को महवर बनाएगा। ये जरूरी है, मैं भी चाहता हूं, और मैं आपको इसके लिए वज़ाइफ, तस्बीहात, दुआएं, अमाल बताता रहता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक खुदा को बेशुमार नफा हो रहा, लाखों इंसानियत से ज्यादा को नफा हो रहा। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने लिए कुछ करके चले जाएं और अपनी नस्लों के लिए कुछ न करके चले जाएं। ये हमारी जो महदूद सोच है, छोटी सोच है, ये इस बात की दलील है कि हम अपनी नस्लों के लिए कुछ नहीं करना चाहते। मैं कहता हूं ना, ऐसा ना करें, बिल्कुल ऐसा ना करें। अपनी नस्लों के लिए कुछ सोचें। मेरे रब मेरे अमाल को इतना कबूल फरमा, मेरा अल्लाह मेरी सच्चाई को इतना कबूल फरमा, मेरा मौला मेरी दयानत को, अमानत को, रिज़्क़ हलाल की राहों को इतना कबूल फरमा, और मेरा करीम मेरी इंसानियत के लिए खैर खाही और सच्ची दोस्ती और सच्ची सोचें इतनी कबूल फरमा कि मुझे भी दे, पूरी उम्मत को भी दे, सारी इंसानियत को भी दे, और मेरी नस्लों को भी दे। बोला अगर नेमतें मुझ तक रखी और मेरे मरने के बाद तुमने छीन ली ना, अपनी नेमतें वो अता फरमा जिसमें बरकत हो और वुस्सत हो, जिसमें बरकत हो, वुस्सत हो। मौला वो नेमतें अता फरमा। मैं तुझसे उस नेमत का सवाल करता हूं जिसमें बरकत हो और वुस्सत हो। मैं उस नेमत का सवाल करता हूं। कभी मायूस न हुआ करें। मखलूक तो फनकार है इस दर्जा की कि पल में संग दरे काबा से भी असनाम तराश है। तू कौन है, क्या है, तेरा दावे कबा भी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराश है। संग दरे काबा से भी असनाम तराशे, काबा के पत्थरों को उठा के उनसे बुत बना लेते हैं। लोग तो ऐसे फनकार हैं। क्या तो लोगों की इन बातों पे अपनी सच्ची मंजिल को खो बैठेगा, अपनी सच्ची मंजिल को रो बैठेगा, अपनी सच्ची मंजिल को अपने से छिनवा लेगा? ख्याल कर, अगर तस्बीह और तस्बीह खाना तेरे दिल में हक बन के आ गया है, अब इस हक को झुटलाने वाले अबू जहल तुझे रास्ते में कदम कदम पे, फिरौन कदम कदम पे, नमरूद कदम कदम पे, शैतान कदम कदम पे किसी भी शक्ल में मिलेंगे। कभी खुद तेरे अंदर से मिलेंगे, तुझे सोचें, वसवसे, बदगुमानियां आएंगी, कभी बाहर से मिलेंगे। पर ख्याल करना, इन सच्ची राहों को लेके क़यामत तक, और तेरी क़यामत कौन सा दिन है? जब तेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। चलते रहना है और अल्लाह से इस्तिकामत मांगते रहना है कि मौला बस जोड़े रख, जोड़े रख। मुझे उस दिन एक बंदे ने कहा, कोई नसीहत, मैंने कहा अल्लाह से मांगता रहे कि मौला मुझे तस्बीह और तस्बीह खाने से सदा जोड़े रख। तस्बीह खाने से अल्लाह जोड़े रख, मौला जोड़े रख। मेरे किसी बेअदबी, गुस्ताखी, कमी या किसी खता, उसकी वजह से मौला इन राहों से मुझे जुदा न कर देना।
جدا نہ کر دینا. میں کل سے غم زدہ ہوں. کل میں نے ایک بندے کے موبائل کے واٹس ایپ پہ مجھے ایک چیز کسی نے دکھائی, پریشانی ہے مجھے مستقل, یقین جانیے. اور جب یہ پریشانیاں مجھے لگتے ہیں میری نیندیں ختم ہو جاتی. ایک صاحب تسبیح خانے میں آئے اور آ کے تسبیح خانے میں تسبیح کی نسبتیں لی. تسبیح کی نسبت لی, پر یہاں کی کچھ قدردانی اس کو نصیب نہ ہو سکی. مجھے کل ایک بندے نے دکھایا, اس نے کہا جی میں بازار میں گیا, اس نے بقاعدہ وہ مووی میں نے دیکھی, وہ ہر دکان سے بھیک مانگ رہا اور خطرناک ترین نشے میں لگ گیا. تسبیح خانے کا, جہان کا بگڑا تسبیح خانے میں آئے, اور تسبیح خانے کا بگڑا بس یہ کوئی کریم کرم کر دے تو اس کی مہربانی ہے. کبھی اللہ سے مانگتے رہے کہ مولا کوئی مجھ سے ایسی بے قدری نہ ہو جائے, زبان سے, لہجے سے, لفظوں سے, گمان سے, خیال سے, احساس سے, ادراک سے, وجد سے, وجدان سے, سوچوں میں, قلم میں, قدم میں کوئی ایسی نہ ہو جائے کہ مولا تو مجھے دور نہ کر دے. میرے لیے بھی, میں بھی تسبیح خانے سے جڑا ہوا ہوں تو کچھ ظاہر میں 2-4 سجدے نماز فرض کچھ پڑھ لیتا ہوں, یہ سب تسبیح خانے کی برکتیں ہیں. میں بھی خود, میری وجہ سے نہیں, میں خود تسبیح خانے کی وجہ سے, تسبیح خانے کی وجہ سے. اگر اللہ جل شانہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کی زبان پہ اپنا نام عطا کیا ہے, کبھی نہ سوچئے گا کہ یہ نام ملا پر بنا تو کچھ نہ. کبھی نہ سوچئے گا اس سے حاصل کیا ہوا, کبھی نہ سوچئے گا. یا آپ اپنی نسلوں کے لیے بیج بو رہے ہیں, اپنی نسلوں کے لیے ذخیرہ بنا رہے ہیں. ہمارے باغ کے نا ارد گرد والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی کر کے پودے لگائے تھے, چھوٹے چھوٹے پنیری لگائی تھی. اب اتنے بڑے ہو گئے, بھائی مجھے بتا رہے تھے بڑے بھائی صاحب کہ جی ہم نے ان میں سے صرف ایک لین بیچی ہے, وہ باغ کو ذرا باغ کے اندر گر رہی تھی, اس سے جو ہے آموں کو نقصان پہنچ رہا تھا, آم چھاؤں میں آ رہے تھے اور آموں کا ثمر ٹھیک نہیں مل رہا تھا, آموں کو دھوپ روشنی چاہیے. وہ ایک لین بیچی ہے, اتنے لاکھوں روپے کی یہ ہے. ایک پل میں مجھے یاد آیا یہ تسبیح کے دانے بیج ہیں, یہ تسبیح کے دانے بیج ہیں. تو ڈالتا جا, ڈالتا جا, اور ڈالتے 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 دم واپسی رخصت ہو جا. جب تیرا وقت آ جائے پھر تیری نسلیں دیکھ, ایک لین اگر کاٹیں گی اور بیچیں گی تو اس ایک لین میں بڑا نفع ملے گا. ابھی بہت سارے کھڑے, ایک انہوں نے کہا ایک حصہ میں نے بیچا, وہ اس لیے کہ آم کے پودوں پہ, درختوں پہ چھاؤں ہو رہی تھی, والد نے لگایا. آپ لگاتے ہیں اپنے پودے, ایمان کے پودے, اخلاق کے پودے, نیکنیتی کے پودے, انسانیت کے ساتھ بھلائی کے پودے, انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کے پودے, تسبیح کے پودے, تلاوت کے پودے, راتوں کو رونے کے پودے, ایام 20 میں 13 اور 14 کی رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے پودے, تسبیح خانے کی طرف اٹھنے والے قدم, اس کے پودے لگاتے جائیں, لگاتے جائیں. یہ بیج ہیں, یہ پھل پھل رہے ہیں. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک جگہ دیکھا کہ فرشتے ہیں, کوئی محل بناتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر بناتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت جبریل سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا آقا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ اصل میں وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کا محل بنا رہے ہیں. نیچے سے میٹیریل آتا ہے تو محل بننا شروع ہو جاتا ہے, میٹیریل ختم ہو جاتا ہے, فرشتے پھر انتظار کرتے ہیں. یہ میٹیریل آپ بھیج رہے ہیں, کبھی خیر خواہی کے نام پہ, کبھی ذکر کے نام پہ, کبھی صدقے کے نام پہ, کبھی تلاوت کے نام پہ, کبھی اللہ سے مانگنے کے نام پہ, کبھی اللہ کے لیے گناہوں سے بچ جانے کے نام پہ. یہ آپ میٹیریل بھیج رہے ہیں.
اور وہاں آپ کا محل تیار ہو رہا. کبھی نہ سوچیں نیکی مجھے راس نہیں آئی، کبھی نہ سوچیں نیکی بہت کر کے دیکھ لی، یہ زمانہ نیکی کا نہ. اس کا مطلب ہے تو نے بندوں کے لیے کی تھی، اللہ کے لیے کی نہیں تھی. اس لیے صلہ بندوں سے مانگتا ہے. جب بندے نہیں دیتے تو نیکی چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کے لیے کرتا جا، اللہ کے لیے کرتا جا، انسانیت کو خیر دیتا جا. تیری طرف انگلیاں اٹھیں، تیری طرف لعنتیں بڑھیں، لیکن لعنت اتنی سستی چیز نہیں ہے. تو اس کا اگر مستحق نہیں ہے تو لعنت واپس پلٹتی ہے اور بڑے خطرناک انداز سے پلٹتی ہے، خطرناک انداز میں پلٹتی. نیکی کا زمانہ نہیں، ہر زمانہ نیکی کا ہے. کس نے کہا ہے نیکی کا زمانہ نہیں؟ ہر زمانہ نیکی کا ہے. نیکی کا دور نہیں، ہر دور نیکی کا ہے. انسانیت کے ساتھ بھلا ہے، مخلوق کی خدمت ہے، اپنی ذات کو اللہ کی ذات کی طرف جوڑنا ہے. ہر دور نیکی کا ہے، ہر دور انسانیت کا ہے. انسانیت کو کسی بھی شکل میں نفع مل جائے، کرتا جا، کرتا جا. بندہ چیخ چلا رہا تھا، ڈوب رہا تھا، اس نے پکڑ کے اس کو نکالا. اس نے کہا جزاک اللہ، پھر دھکا دے دیا. انہوں نے کہا پھر کیوں؟ اس نے کہا میں نے پڑھا تھا نیکی کر دریا میں ڈال. بیچارے کو پھر دھکا دے دیا. وہ دریا میں اس لیے کہ بس دفن کر دے، اس کو دفن کر دے. رب دیتا ہے، بڑا غیور غیرت والا ہے. دل کے جذبوں کو دیکھتا جا رہا. یہ کس لیے کر رہا؟ یہ کس لیے کر رہا؟ میرے لیے؟ اللہ تو اندر کو جانتا ہے. حکیم طارق آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے پر رب کو نہیں دے سکتا. آپ کے سامنے روپ بہروپ بنا سکتا ہے پر رب تو جانتا ہے، خوب جانتا ہے. اس کے سامنے سارے ایکس رے ایک پل میں ہو جاتے ہیں. رب جانے کہ یہ بندہ کس لیے کر رہا. یہ میں آپ کو پتے کی باتیں بتا رہا ہوں آج. میرا رب جانے کس لیے کر رہا. اللہ کے لیے کر رہا، میرے لیے کر رہا. اللہ اس کی نیکیوں کو جمع کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، اور وہ بھلا آخر کار یا اسے ملتا ہے یا اس کی نسلوں کو مل کے رہتا ہے. اس کی نسلوں کو مل کے رہتا ہے، اور کسی شکل میں اچانک ملتا ہے، اچانک ملتا ہے. بیٹھے بٹھائے بندے کے ساتھ برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں، دولتیں، عزتیں، خیریں ایسے ایک پل میں اسے چھاؤں کر جاتی ہیں. ایک پل میں اس کے سامنے چھاؤں کر جاتے. معلوم ہوا کہ کہیں سے کچھ نیکی آئی ہے، اس کو کوئی دعا لگی ہے، اس کی ماں کی، اس کے باپ کی، اس کے مرشد کی، یا اس کے کسی بڑی کی نیکی اور دعا، اس کا پیچھا کیا اس نے اور رب نے اس کو نوازا. کئی واقعات میرے پاس آتے ہیں کیونکہ آپ آئیں گے تو دکھیارے، اور دکھیارے اپنے غم کی کہانیاں مجھے سنائیں گے. کئی واقعات آتے ہیں کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناتی شیطانی چیزیں ہماری طرف حملہ کر رہی ہیں، پر کوئی طاقت ایسی ہے، کوئی طاقتور چیز ایسی ہے، وہ جا کے ان کو ایسے سٹاپ روک لیتی ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ پیچھے بڑوں کی دعائیں ہیں، ان کے صدقات، ان کی خیرات، ان کے مصلے، ان کی تسبیحاں، ان کے سجدے، ان کے رکوع، ان کے قیام، ان کے لیے رزق حلال جو ہے انہوں نے محنت کی. یہ وہ ساری نیکیاں ہیں جو آ کے ہمارے لیے ڈھال بن جاتی ہیں اور ہمارے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں یوں ہٹ جاتی ہیں. ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے انسانیت کے لیے نفع کا سامان بننا ہے. نفع کا سامان. میں نے ایک چھوٹی سی آواز اٹھائی جس میں 100 غلطیاں، 100 نقص، 100 جھول، کہ انسانیت کے لیے ایک میں نے چھوٹی سی آواز اٹھائی. میں حیران ہوتا ہوں کہ انسانیت کو اتنا نفع پہنچا اور اتنا فائدہ پہنچا. چھوٹی سی آواز، ایک چھوٹے سے بول بولے، یہ وظیفہ پڑھ لو یہ ملے گا، یہ تسبیح پڑھ لو یہ ملے گا، یہ عمل کر لو یہ ملے گا. اور وہ میری نہیں،
मैंने बड़ों से लिए, मैंने अल्लाह वालों से लिए, मैंने मुख्तलिफ जराए से वो चीजें ली, मुख्तलिफ जराए से वो चीजें ली, और वो आप तक अमानत समझ के पहुंचाई और पहुंचा रहा हूं, और अभी भी पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह, और पहुंचा रहा हूं। इंसानियत को नफा मिला। हर फर्द ये कहता है, किसी महकमे में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी दफ्तर में अगर कोई एक दो बंदे अबकरी से ताल्लुक हो तो वो कहते हैं कि ये मसला है, वो बंदा खड़ा है, उससे जाके पूछो। अबकरी की वेबसाइट खोलो। कराची में एक बहुत बड़ा इदारा है, मुझसे वहां उस इदारे के साथ थे, मुझे कहने लगे फला बंदा है मशहूर आदमी, आपको बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन उसके पास जब कोई मसाइल में घिरे लोग आते हैं वो कहते हैं कि अबकरी की वेबसाइट हकीम तारिक की खोलो, ये चीज वहां से मिल जाएगी, उसको बता दो। चलो मैंने कहा मुझे बुरा कहता है, मेरे काम को तो बुरा नहीं कहता, लगता है मेरे काम से मखलूक को फायदा हो रहा, मुझे कह दे, कोई कौन सी बात है। कभी नेकी करके ये ना कहें कि नेकी मुझे रास नहीं आई, कभी नेकी करके ये नहीं कहे कि नेकी का दौर नहीं, भलाई का दौर नहीं, भले का दौर नहीं। हाँ, उसने तुझे भले का रिस्पांस नहीं दिया, उसने तुझे भले का भला नहीं दिया। जब रब तुझे भले का भला देने पे आ जाए फिर हाँ, अल्लाह ने भले के भले के लिए तसल्लियां दे दी कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान, इंतजार कर, तुझे दूंगा या तेरी नस्लों को दूंगा या तेरी आखिरत के लिए दूंगा। मेरा एहसान हमेशा रहता है, हमेशा रहेगा, तो मेरे एहसान को भूल न जाना। क्यों कहते हैं करे कोई भरे कोई, बुराई के लिए ये तो कहते हैं, क्या नेकियों के लिए नहीं है ये चीज? करे कोई भरे कोई। इंसानियत हमारे सामने रहे, उसका नफा हमारे सामने रहे, और हमारे हर सांस हर पल में इंसानियत हो। यहां तक कि जिस कमरे में ये हल्दी का रंग ना पीला होता है, हल्दी का रंग, पीले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? येलो, पीला होता है। जिस कमरे में पीले रंग का गुलदान हो या ऐसा फानूस हो, टेबल लैंप हो, जिसमें से पीले रंग की रोशनी निकले, रोशनियों का जिंदगी में बड़ा असर है, हल्दी के रंग का जिंदगी पे असर है। हाँ, रंग का असर है। कभी जर्दा तो खाया, सोचा नहीं जर्दा क्यों है, बड़ा जर्दा खाया जालिमाना अंदाज से। हाँ? ये जर्दा क्यों है, इसके में सुर्ख रंग क्यों नहीं डाला, नीले रंग क्यों नहीं डाला, कभी नहीं सोचा। कहते हल्दी के फायदे बता, यही तो बता रहा हूं मैं आपको। जर्दा खाया, जर्दे का रंग और हल्दी का रंग एक है, और जाफरान का रंग एक ही है। जर्दा तो खाया, कभी रंग पे नजर तो नहीं डाली कि जर्दे का रंग सुर्ख डाल दें, क्या हर्ज है, नीला डाल दें, काला डाल दें, और ये पीला ही क्यों डाला। हाँ, रंगों का। और उसी लिबास शौक लिबास होता है, बड़ा असर होता है रंगों का जिंदगी में। और उसी लिबास बड़ा शौक होता है, अक्सर सुर्ख होता है या शौक लिबास होता है। वो नाअहल होंगे जो अरूसी लिबास हल्के लिबास बनाए, उनको पता ही नहीं है नफ्सियात का। कभी जर्दे को खाया, लैंप अगर हो, टेबल लैंप, और उसमें से पीली रोशनी निकल रही हो, अंदर बल्ब जिस किस्म का हो, उसको बाहर शेड ऐसा हो कि रोशनी पीली येलो, अगर उस कमरे में आए और उसमें हामला सोए, उसका बच्चा हमेशा खूबसूरत होगा, और उस बच्चे की डिलीवरी में तकलीफें, ऑपरेशन नहीं होंगे, और बच्चा खूबसूरत गोल मटोल होगा। हाँ, फीना गोंगलू, खूबसूरत बच्चा होगा। रोशनी का असर है।
रोशनी का असर है, पीली रोशनी। और ये जर्दा जो है ना, ये मुगलिया दौर की इजाद है, खमीरा और जर्दा और भी चीजें। मुगल बादशाहों की नजाकत और नफासत, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। नजाकत और नफासत मुगलिया दौर के बादशाहों की। हकीमों से कहा, हम तुम्हारे पुराने माजून, अपना काले माजून और खट्टे मीठे कड़वे नहीं खा सकते, हमें सेहत भी चाहिए, सेहत भी चाहिए और साथ हमें जायके भी चाहिए। तो हकीमों ने कहा, अच्छा ठीक है। ये हकीम हमेशा बादशाहों की गोदों में, बादशाहों की छांव में पले हैं। मुआलिज, हकीम जिसे आज कहते हैं हम, तबीब, हमेशा शाही शाही रहे हैं। हिकमत हर दौर में महंगी रही है, आज भी महंगी है। अगर इसमें वो महंगे अज्जा डालें, और सस्ते नुस्खे भी हैं उसके मुतबादल। सेब का मुतबादल जो है वो गाजर है, और जाफरान का मुतबादल हल्दी है। हाँ, जाफरान तो अभी सस्ता हो गया। मैंने अपनी दवाओं में 5.5 लाख रुपए किलो डाला। मेरी एक दवा है शिफायाबी, इसमें जाफरान डलता है। अब तो कुछ कम हो गया, 5.5 लाख रुपए किलो डाला। जो लिखा है उसमें डालो, बाकी मामला अल्लाह के साथ है, दावा कर नहीं सकता। जाफरान का बदल हल्दी है। जिसको 5.5 लाख रुपए किलो जाफरान नहीं मिलता, उसे 100-150 रुपए किलो हल्दी, पता नहीं हल्दी कितने किलो है मुझे पता नहीं, 100-150 रुपए किलो हल्दी मिल जाएगी उसको, है 340 रुपए, 140, चलो 100-200 रुपए किलो है। फिर मुगल बादशाहों के लिए उन्होंने खमीरे तैयार किए, और खमीरे का ऐसी एक उंगली खाई, उसका जायका भी लाजवाब और तकवीयत भी बेहतरीन। इसी तरह मुगल बादशाहों के लिए उन्होंने ऐसी ग़िज़ाएं तैयार की, ऐसी ग़िज़ाएं तैयार की जिस ग़िज़ा का ताल्लुक रंग के साथ भी हो, तकवीयत के साथ भी हो, उसके लिए जर्दा तैयार किया। क्योंकि जो जर्द रंग है, जर्द रंग, इस रंग के साथ एक चीज है कि ये इंसानी मिजाज के ऐन मुवाफिक है। इसलिए जोगियों का रंग जर्द होता है, और बाज फुकरा, अल्लाह के दोस्त, बाज दरबारों का रंग जर्द होता है, उनके लिबासों का रंग अगर सुर्ख हो जाए, उसमें खून खारी, खून रेजी और शिद्दत, हिद्दत ही चीज आती है। ईरान में कज लिबासों को निकाल दिया था। ये कज लिबास, ये सुर्ख लिबास वाले, इसके माने ये हैं। उनको ईरान में अब भी कज लिबास हैं। सुर्ख लिबास का जिंदगी पे असर, पीले जिंगाज का, और सबसे बेहतरीन और नरम और लाइट पुलाइट लिबास वो सफेद है, जो मेरे आका मदीने वाले ने सबसे ज्यादा पसंद फरमाया। हत्ता के पीले रंग की पगड़ी हमारे पास मजहबी रहनुमा भी पहनते हैं। पीले रंग की, उसे पीला रंग होता है क्यों जी? पीला रंग है ना, ये मेरे आका ने पहनी है। आप किताबें उठा के देखें, हमारे मुल्क के बाज मजहबी रहनुमा ये पीले रंग का लिबास रुमाल पहनते हैं, मौलाना फजल रहमान जैसा, है ना, ये मेरे आका मदीने वाले ने पहना है। ये किताबों और रिवायात में मौजूद है। इसका असर जिंदगी पे होता है, हल्दी के रंग का असर जिंदगी पे है। आप तो इसके रंग को पहले देखें, आप हल्दी को पिसा हुआ देखिए, आपको भला महसूस होगा। बाज रंग ऐसे थे, सामने आए घबराहट महसूस होती है। मैं डाक चेक कर रहा था, डाक में उस दिन एक रंग का ऐसे खत आया, उस पर लिखा हुआ था, एकदम मुझे घबराहट, मैंने उस खत को उल्टा कर दिया। रोशनी का असर, पीले रंग की, येलो रंग की रोशनी का असर घर में हो, घर में झगड़े नहीं होते, घर में परेशानियां नहीं होती। मुझे एक इंटीरियर डिजाइनर मिला,
बड़ा तजर्बाकार, मुझे कहने लगा कि हम घर वालों के घर को कहते हैं बगैर पेंट के हमें घर दे दो, बगैर पेंट के हमें घर दे दो, हम घर खुद सजाएंगे। एक एक बंदे का इंटरव्यू करते हैं, इसका मिजाज ये है, इसको कमरे के लिए ये रंग चाहिए, इसका मिजाज ये है, इसकी तबीयत के लिए ये रंग चाहिए। कहने लगा एक बंदा था उनमें एक उनका बेटा था, उठते उठते वक्त लगाता, बैठते बैठते वक्त लगाता, बेचारा ढीला ढाला सा। मैंने कहा इसको जरा तेज रंग दे दो। और एक ऐसा था कि हाथ में आया नहीं और उसने छोड़ा नहीं मुंह पे। उन्हें कहा इसको जरा हल्दी वाला रंग को, हल्का सा रंग दो इसको। ये जर्दा खाते हैं ना, जर्दे का ताल्लुक हल्दी से है और जर्दे का ताल्लुक जाफरान से है। जाफरान से जर्दा बना है, और जिसको जाफरान मुयस्सर नहीं, जो तासीर जाफरान की है वो ही तासीर हल्दी की है। अगर लाखों रुपए किलो का जाफरान मुयस्सर नहीं तो कौन सी बात है। रब बड़ा करीम है, रब ने हर चीज का मुतबादिल रख दिया है। अमीर के लिए ये रखा है तो गरीब के लिए रखा है। अगर मालदार के लिए सच्चे मोती रखे हैं तो उसका मुतबादिल सदफ सीप रखी है, वही उसके तासीर है। अगर उसके लिए रखा है सेब तो उसके लिए रख दिए बेर, उसके अंदर वो तासीर रखती है, और गाजर वो रखती है। इसी तरह जाफरान है, जाफरान की तासीर जो है वही हल्दी की तासीर है। और जाफरान की क्या तासीर है? जाफरान के बारे में यहां तक आता है कि जो जाफरान के खेत से जाफरान चुनता है, यानी जैसे कपास चुनी जाती है, जाफरान का फूल होता है, यह फूल चुनता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसकी नजर बढ़ जाती है। हमारा एक तेल है करामाती तेल, इसमें हम तिलों का तेल डालते हैं। फैसलाबाद में एक ऑयल मिल है, वहां हम बंदे बिठाते हैं दिन रात, उसमें से तिलों का तेल निकलवाते हैं। मैं वहां गया उनसे सौदा करने के लिए तिलों का तेल में, वहां उस वक्त सरसों का तेल निकल रहा था, सरसों का तेल। उसमें आंखों में एकदम मेरे पानी आ गया, सारे बाहर गए, मैं वहां खड़ा रहा, मेरी आंखों में पानी आए। मैंने उसके मालिक को कहा, आपके बेटे के, आपके किसी नौकर को, आपके किसी खादिम को ऐनक लगी हुई है? कह रहे नहीं। मैंने कहा कभी नहीं लगेगी। कहने क्या मतलब? मैंने कहा सरसों के तेल की यह तासीर आंखों के लिए लाजवाब है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनका वालिद था आंखों से नाबीना। अब सुने, पाकिस्तान की मोटरसाइकिल बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है, अब उन्होंने मोटरसाइकिल भी बनाना शुरू कर दिया। उनका वालिद आंखों से नाबीना था और बूढ़ा था। जब 47 का हंगामा हुआ, 1947 का, उस बूढ़े को वहीं छोड़ दिया। एक सिख था हमदर्द, उसने क्या किया, सरसों के साग में, सरसों के फूल का रंग क्या होता है? अब सुने, हल्दी कोई बता रहा हूं मैं, सुने। उसने क्या किया, सरसों के, ये मेरे अपने वालिद रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्तों में पढ़ा। मेरे वालिद डायरी लिखते थे, मेरे दादा डायरी लिखते थे, मेरे परदादा डायरी लिखते थे। मैं उनकी डायरियां इकट्ठी कर रहा हूं सारी, मैंने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की याददाश्तों में पढ़ा। अच्छा, उन्होंने क्या किया, एक घड़ा पानी दे दिया और सरसों के खेत में उस बाबे को छुपा दिया। सिख ने कि तुझे कोई मार ना दे, 4 दिन तेरे मेरे इकट्ठे गुजरे हैं, चंगे गुजरे हैं। गांव में एक था, वो सारा दिन जो है सरसों का साग खाता, उसके फूल खाता, और प्यास लगती तो वही प्यास होता, यानी पानी पी लेता। कई हफ्ते उस सरसों के खेत में रहा। जब कुछ अमन हुआ, बाहर निकला तो अंधा नहीं था, बिल्कुल ठीक देखता था। जहां सरसों की ये खेत की तासीर है, वहां उसके फूलों के रंग की तासीर भी देखे। तो मैंने उस आयल मिल वाले से पूछा, वो सुल्तानी आयल मिल है फैसलाबाद, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप में से कोई आंखों में? कह रहे कोई नहीं। मैंने कहा ये सरसों के तेल को निकालते हुए जो उसकी गैस निकलती है और उसके अंदर तासीर होती है और जिससे आंखों से पानी आता है,
आपने महसूस किया हमारी तिब में बात सुरमे ऐसे होते हैं, आंखों में लगाओ तेज सुरमे आते हैं, आंखों से पानी आता है, कहते हैं आंखों के लिए मुफीद। हमारे ऊपर बड़ी चीजें असर करती हैं, हमारे ऊपर जाफरान का रंग असर करता है, हमारे ऊपर हल्दी का रंग असर करता है। हल्दी तो असर करती है, उसकी तासीर भी बताता हूं, और उसका रंग भी असर करता है, हल्दी का रंग भी असर करता है। फिर ज़हन में रखे, हर वो चीज जो जमीन के अंदर जड़ वाली हो, मूंगफली जड़ वाली चीज है और हल्दी भी जड़ है, रूट है, रूट्स है। जो जड़ में होता है वो किसी चीज में नहीं होता। ये जो से है ना, से ये जिसके बाल कांटे होते हैं, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने एक दफा एक राइफल वाला बंदा मंगवाया, वो से थी, उससे क्या करती थी, पौधा खड़ा खड़ा, मोटा दरख्त खड़ा खड़ा खुश्क हो जाता था। ये क्या? पता चला कि ये जो सिंह है ये उसको खोदती है और उसकी नरम नरम जड़ें खाती है, इसको अच्छी लगती है, और जड़ें जब सारी खत्म हो जाती हैं सारा दरख्त खुश्क हो जाता है। फिर ये सिंह के गारों को तलाश करवाते थे, उसको खुदवाते थे, फिर उसके बाद पानी छोड़ते थे, फिर वो निकलती थी, फिर उसको मारते थे। एक से ऐसी थी जो मरती नहीं थी, इसके लिए फिर बाकायदा एक राइफल वाला, बंदूक वाला आया, और मैंने नहीं देखा, वालिद साहब रहमतुल्लाह फरमा रहे थे कि आज मैं उसको मार के आया हूं, आज मर गई है, और वो बड़े पुरसुकून थे कि वो जालिम मेरे कितने पौधे खा गई है। जिसने पौधे लगाए होते ना उसको बड़ा उसका एहसास होता है, हाँ बड़ा एहसास होता है। फरमाते थे मैं अपनी दुकान छोड़ के, कारोबार छोड़ के जाता हूं, वहां जाता हूं तो देखता हूं तो सारे के सारी वो मेरा दरख्त खुश्क हो जाता है, पूरा दरख्त खुश्क हो गया, मोटे तना दरख्त खुश्क हो गया, वो नीचे से जड़ें खाती है, जो जड़ों में तासीर है वो नहीं किसी और चीज में। और ये हिंदुआना मिजाज है। हिंदुओं के बकौल मौलाना कलीम सिद्दीकी दाऊद बरकातुहू के फरमाते थे, मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, और उनके बारे में फरमाया कि हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हिंदुओं के मिजाज में एहसान मंदी का जज्बा है। हिंदू को जिस चीज से नफा होता है हिंदू उसका अदब करता है। वो गाय से नफा हो, वो पीपल के दरख्त से नफा हो, वो किसी चीज से नफा हो, हिंदू उसका अदब करता है। हमारे यहां लॉरेंस गार्डन, लाहौर में लॉरेंस गार्डन में एक दरख्त है, और सड़कों पे भी लगा हुआ है, अर्जुन का दरख्त कहते हैं उसे। दिल के वाल खोलने के लिए लाजवाब चीज है, ब्लड प्रेशर का आखिरी इलाज है, टेंशन की बेहतरीन दवाई है। अब हिंदुओं के नाम में अर्जन दास आम मिलता है, अर्जन सिंह, अर्जन दास। पीपल सिंह, पीपल का दरख्त, उसकी पूजा करते हैं। हल्दीराम, उस हल्दी की नफे और हल्दी की इफादियत और हल्दी के फायदे को सामने रखते हुए नाम के साथ हल्दीराम रख लिया। अब इसका फायदा सुने, जो मैंने बताया कि जो चीज रूट से हो, जिस चीज का ताल्लुक जड़ों से हो, तो वो पौधा सारी ताकत उसी में लगा देता है, और जो चीज शाखों पे हो उसकी वो ताकत नहीं होती जो जड़ों वाली की ताकत होती है। सुने, एक है शाखों पे फल लगना, एक है जड़ों का फल, जैसे मूंगफली ये जड़ों में, रूट्स में होती है, हल्दी है, और भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका, आलू, शकरकंदी, ये देखें, अदरक है, सुंठ, जंजबील, अदरक है, तो ये हल्दी जो है इसका ताल्लुक जड़ों से है। इसको पीसे खुद पीस के, और इसको शीशे के बर्तन में रखें तो बहुत बेहतर है। जब से प्लास्टिक के बर्तन आए हैं तासीर आधी हो गई है, और ग्राइंडर ने और तासीर आधी कर दी है। अगर लोहे के होम दस्ते में पीसे, ज्यादा मिकदार है, मजबूरी है और बात है, उसको मशीनों में पीसना मजबूरी होता है, लेकिन अगर लोहे के होम दस्ते में पीसे, और यहां तक कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा था, हमारे एक साथी है पीर जी कहते हैं, वो बैठे थे, एक बंदा मुझे कहने लगा कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के असा को तहकीक कर लिया, क्या था?
और उसकी तासीर क्या थी। मैं फलां दरख्त को गया, ये जो आपके इस्लामाबाद से आगे जाए ना, बारा कहू आता है, ये असल में भारा कहू है। कहू का दस्ता होते हैं, डालते हैं, बड़ा मजबूत होता है, लकड़ी, कहू की लकड़ी। वहां एक दरख्त था, उसको भारा कहते हैं, जहां जिन्नात के असरात हो। जंगल था, चूंकि ये सारा, ये मरी सारा जंगल था, ये इस्लामाबाद सारा। तो वो कहू का दरख्त था, जो भी उस कहू के करीब जाता था वो बीमार हो जाता था, जिन्नात उसको नुकसान पहुंचाते थे। कहा वहां एक दरख्त है, उस दरख्त को काटना है लकड़ी की छुरी से। अगर लोहे की छुरी से काटेंगे तासीर खत्म हो जाएगी। लकड़ी की छुरी से काटे और उसका असा बनाए, और वो असा वो तासीर देता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के असा की तासीर। और अजीब बात है, वो पाकिस्तान में है। ये मुझे मस्जिद नबी शरीफ में बताया अभी इसी सफर में। हल्दी को पीस लें, महफूज रख लें, चौथाई चमची, आधी चमची, 1 चमची, तबीयत के मुताबिक थोड़ी ज्यादा, पहले थोड़ी शुरू करें, ज्यादा ना करें। हमारे इशफाक खान साहब है, वो कहते हैं जो दवाई आप आधी चमची बताते हैं वो मैं 1 डब्बी खाता हूं। हाँ, कहने लगे खमीरा जो है लिखा हुआ है आधी चम्मच सुबह प्याचा, फिर आधी चमची से क्या होता है, पूरी 1 डब्बी खाते हैं वो। हमारा एक कलंदर है, वो 70 शिफाओं की हमारी पूरी डब्बी एक खाता है। मुझे एक दफा कहने लगा, एक बंदे ने आज रहा मजाक का, कहने लगे ये 70 शिफाओं की डब्बी खा जाता। मैंने कहा, कहने लगे हकीम साहब दवाई आपकी है, पर आप खुद खा के देखें, फिर कमाल देखें। फिर उसने कमालात भी बताए जो यहां बता नहीं सकता। तो मुझे कहने लगा कि पूरी डब्बी खाता हूं मैं। आधी चम्मच, चौथाई चम्मच दूध में डाल के पिए, कैप्सूल में भर के खाएं। दूध में नहीं पचते तो कैप्सूल भर लें, मुंह में डाल के ऐसे चम्मच खा लें। उस दिन यहां एक साहब बैठे थे। कौन बैठे थे? बैठे अब वो कहते थे मेरे चेहरे को देखे, बूढ़े थे, सुन रहे थे आप, मेरे चेहरे को देखे, मैं हल्दी इस्तेमाल करता हूं और मैंने सदा फिटनेस पाई है, कोई बीमारी नहीं। जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, डिस्क के मसाइल, इसके लाजवाब इलाज है। आपने एक चीज देखी कि सड़कों पे खवातीन पत्थर ये टोकरी में डाल के ना सड़कें बनाती हैं, ठेका होता है, उनके मर्द, उनके बच्चे, उनकी खवातीन सड़कें। मेरे पास इस तरह के लोग आए, मैंने उनसे तजर्बात पूछे। कहने लगे जी हमारे यहां माई का बच्चा होता है, आपके यहां डॉक्टरों के लिए जाते हैं, हमारे यहां कौन नहीं ले जाते। बच्चा हुआ, बच्चा होते ही हल्दी का इस्तेमाल शुरू करा देते हैं। तीसरे दिन माई टोकरी लेके पत्थर डाल रही होती है और बच्चे को दूध भी पिला रही होती है, चल जा। मैं सफर में जा रहा था, वहां वादी नीलम में 8 मकाम से आगे कैल से आगे फुलवाई, आगे बॉर्डर, मैं वहां सफर में जा रहा था। मुझे रास्ते में बकरियों के बहुत बड़े रेवड़ काफले मिले। उन काफलों की तरतीब ये होती है कि उनके पास हल्दी होती है और देसी घी होता है। यूं बकरी ने बच्चा दिया, बस यूं बकरी ने बच्चा दिया, उसको हल्दी और देसी घी निकलवा दिया, बच्चे को उठा के टोकरी में डाल दिया, बकरी साथ चल रही है। चल, कौन सी रख और कौन सी ये टीके और कौन सी दवाएं और क्या कहानी। हमारी माई एक बच्चा जन्मने के बाद तेग के बगैर नहीं बैठ सकती, एक बच्चे के बाद तेग के बगैर नहीं बैठ सकती। और लाहौर की माई अक्सर एक बच्चा जन्मने के बाद मोटापे की तरफ माइल हो जाती है। उसकी वजह यह है, पहले दौर में हामला खवातीन के लिए क्या चीजें बनाते थे, उसमें हल्दी का जुज़ लाजिम होता था। सही कह रहा हूं, हल्दी होती थी। जोड़ों के दर्द का इलाज, कमर के डिस्क का इलाज, इसका लेप भी जैतून के तेल में और इसका खाना भी मुसलसल इस्तेमाल, और ये हर मौसम में मुफीद है।
ہر موسم میں مفید، ہر مزاج میں مفید، ہر طبیعت میں مفید ہے، اور انوکھا اس کا رزلٹ ہے، انوکھی اس کی تاثیر ہے، ہر موسم میں مفید ہے۔ مجھے آج ایک صاحب نے ایک حلوہ بنا کے بھیجا، ایک حلوہ بنا کے بھیجا، یہ 7 کاغذ بھی دیا، یہ حلوے کا ڈبہ ہے، واہ، اس پہ بادام لگے ہوئے ہیں اور اوپر جو ہے پستہ ہے اور نیچے جو ہے حلوہ ہے، اور ہلدی کا حلوہ بنا کے بھیجا۔ میں کھاتا ہوں، اب تم دیکھتے رہو۔ ہوا ایسے، ہم تھے کالج میں پڑھتے، میرے ساتھ کلاس فیلو تھا، وہ اکثر چیزیں کھا جاتا تھا، پیسے میرے ہوتے تھے، اماں پیسے دیتی تھی، اکثر چیزیں کھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگا یہ ٹشو بھی پیلا ہو گیا ہے، ہو گیا۔ ایک دفعہ کہنے لگا طارق ملک شیک نہ بنائے، میں نے کہا بناتے ہیں۔ آم لے آئے، دودھ لے آئے، ملک شیک بنایا۔ میں نے کہا تو ایسا کر ذرا یہ مکھن دھو کے آ باہر۔ جب دھونے گیا میں نے اندر سے کنڈی لگا دی۔ اب جالی تھی، جالی سے یوں کر کے طارق تھوڑا جا بچا دے، تھوڑا جا طارق تھوڑا جا، جالی تھی نا، جالی سے آر پار نظر تو نہیں آتا، ایسے ہاتھ رکھ کے کرے تھوڑے سے بچا دیں۔ میں کہ ٹھہر جا، بچاتا ہوں تیرے لیے۔ ہر دفعہ کھا جاتا تھا۔ اب یہ انہوں نے فائدے لکھے، یہ انصاری صاحب آپ کو ہدیہ ہے۔ کتنے سال کے ہیں؟ 78 کے، ماشاءاللہ۔ میری بہن نے آپ کے لیے ہلدی کا حلوہ بنایا ہے جو دوا بھی ہے اور اچھی غذا بھی ہے۔ یہ تجربات میں بہت فائدہ ہوا اس کا۔ کچی ہلدی آدھا کلو، کچی ہلدی مل جاتی ہے، نہ ملے تو خشک ہلدی۔ بیسن آدھا کلو، کھویا آدھا کلو حسب ضرورت، اور گوند جو ہے وہ کیکر کی، گوند کنی اصل میں وہ کیکر کی ہوتی ہے، 100 گرام۔ پستہ بادام حسب ضرورت، دیسی گھی آدھا کلو، کمر کس 100 گرام، چارے مغز 100 گرام، سونف 1 کپ، اور چینی آدھا کلو۔ اب انہوں نے ترکیب بتائی کہ ہلدی چھیل کر پیس لیں۔ یقین جانیے میں نے ایک خوراک کھائی ہے، مجھے گرمی محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ صحیح بات ہے، اس تھوڑی سی کھائی میں نے۔ ہمارے ایک علامہ صاحب تھے، اتنے حساس تھے کہ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب کے پاس آتے تھے تو وہ انہوں نے ان کو چائے کی سخت سردی، ہوا چل رہی ٹھنڈی، انہوں نے ان کو چائے رکھی نا تو چائے پینے کے لگا، او سارا جسم گرم ہو گیا۔ اب شیروانی اتاری، پھر اندر سے صدری اتاری، وہ اتارے۔ وہ کہنے لگے ہم نے چائے پی پی کے سارے گرم ختم کر دیا، ہمارا جسم گرم ہوا ہی نہیں۔ پھر ان کے سامنے وہ کہنے لگے، ایک دفعہ میں نے ان کے سامنے بادام رکھے، ایک بادام کھایا اور کہا دماغ روشن ہو گیا۔ کہ ہماری تو بوریاں ختم ہو گئی روشن، کہ ہماری تو بوریاں ہی ختم ہو گئی، ہمارا دماغ روشن نہ ہوا۔ ہلدی چھیل کر پیس لیں یا کوٹ لیں، تھوڑے سے گھی میں فرائی کر لیں، بیسن کو بھی گھی میں فرائی کر لیں، بھون لیں۔ باقی چیزوں کو بھون کر بیسن میں مکس کر کے تھوڑی دیر بعد چینی میں ڈالیں، اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کھویا ڈال لیں، پکائیں، چولہا بند رکھیں۔ سونف، کمرکس، مغزیات اور چیزیں علیحدہ علیحدہ صاف کر کے پیس لیں، اور چارے گوند بھی تھوڑے سے گھی میں فرائی کر کے پیس لیں۔ یہ اس میں چارے گوند لکھا ہے، کیکر کا گوند نہیں لکھا ہے، چارے گوند لکھا ہے۔ ہر روز صبح 2 چمچ کھائیں، بچوں کو بھی دیں۔ جوڑوں کے درد، جسم کی کئی بیماریوں کے لیے مفید۔ میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے جسم پر کافی چوٹیں، اندرونی بیرونی، یہاں تک کہ اس کے ٹشوز میں بھی بہت زیادہ درد، وہ صحیح طور پر لیٹ نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اپنے بھائی کو ہلدی کا حلوہ دودھ کے ساتھ استعمال کرایا، اس کے دردیں بھی ختم ہوئی اور وہ صحیح طور پر چلنے پھرنے لگا۔ میری کزن کی پسلیاں
और रीढ़ की हड्डी एक हादसे में बुरी तरह मुतासिर हुई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज बहुत देर तक चलेगा, बेल्ट हर वक्त पहननी होगी। कजन से मुलाकात के बाद उसे यही हल्दी का हलवा खिलाने का मशवरा दिया। यकीन जानिए उसने इस्तेमाल किया तो बहुत जल्द, और 2 या 3 साल होना था वो चंद महीनों में, यानी जो इलाज 2 या 3 साल में होना था वो चंद महीनों में हो गया। और मेरा कजन अल्लाह के शुक्र से अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर कर रहा। मेरी अम्मी जान को जब सर्दियों में जोड़ों का दर्द हो या सर्दी ज्यादा लगे, वो रोजाना 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करती हैं, उनको बहुत फायदा होता है। कच्ची हल्दी आधा किलो, बेसन आधा किलो और खोया आधा किलो या हस्ब जरूरत, और 4 गोंद 100 ग्राम पिस्ता बादाम हस्ब जरूरत, और देसी घी आधा किलो, कमर का 100 ग्राम, चारे मगज 100 ग्राम, सौंफ 1 कप, चीनी आधा किलो। ये देसी चीजें जब बनती थी, फिर ये रंग बिरंगी चीजें जो कैप्सूलों की शक्ल में, गोलियों की शक्ल में आती हैं, फिर ये नहीं होती थी, और घर की सारी तनख्वाहें फिर दवाओं पे नहीं लगती थी। क्या ख्याल? घर की सारी तनख्वाह। आप ये हलवा ना भी बनाएं, अकेली हल्दी इस्तेमाल करें। बना लें, अच्छी बात है, बना लें, अच्छी बात है। आप अकेली हल्दी इस्तेमाल करें, उस अकेली हल्दी का कमाल देखें। जो शख्स ये कहता है कि रात को सोते उसकी टांगों में दर्द होता है, उसकी पिंडलियों में बेचैनी होती है, रस्सी से हजारमन से पांव को बांधता है, वो हल्दी को इस्तेमाल करे दूध में। सफर का थका मारा आया, हल्दी इस्तेमाल करें। पहलवानों की ग़िज़ाओं में, आपका लाहौर पहलवानों का शहर है, पहलवानों की ग़िज़ाओं में दूध हल्दी का इस्तेमाल लाजिम होता था कि उन्हें चोटें लगती थी या उनकी हड्डियां मजबूत होती थी, और जो ये चाहता है कि उसकी हड्डी कभी ना टूटे, क्योंकि छोटी सी चोट से हड्डी टूट जाती है। हमारी ग़िज़ाएं ऐसी हैं, हमारे दूध के अंदर केमिकल, हमारी सब्जियों में केमिकल, हमारे आटे में, हमारा आटा ऐसा है कि जिसमें सब कुछ निकाल लिया जाता है। अगर देसी गंदम अपने सामने ना पिसवाएं तो बाकी तो सब कुछ निकला हुआ होता है उसमें। हमारी ग़िज़ाएं वो नहीं है जो ग़िज़ाएं हों। हल्दी वह चीज है जिसको खाद नहीं मिलती। अजीब बात है, हल्दी वह चीज है जिसको स्प्रे नहीं आता। होता है स्प्रे, मिट्टी के अंदर स्प्रे क्या करेंगे? हल्दी वह चीज है जिसको केमिकल नहीं लगता। ये बगैर केमिकल के ऐसी मुअस्सर तरीन दवा है और ग़िज़ा है जो आपकी कमर को, आपके टांगों को, आपके पट्टों को, आपके असाब को हैरत अंगेज तौर पर मजबूत रखे। हैरत अंगेज तौर। एक छोटा सा टोटका बताता हूं आपको, सिर्फ 2 चीजें, हल्दी और कचूर। कचूर जानते हैं? कचूर भी हल्दी की तरह जमीन में दफन होती है। कचूर हल्दी की तरह उसकी जो है वो होती है, क्या कहते हैं इसको? गांठें होती हैं हल्दी की तरह। बस ये दोनों चीजें पीस लें। आपके घर में जिस बंदे को मैदे का कोई मसला हो, मैदे का और दिल का कोई मसला हो, किसी भी किस्म का हो, और पुराना बुखार न छोड़ रहा हो, और खवातीन के मसाइल किसी भी वजह से हो, ये हल्दी और कचूर हम वजन पीस लें। 1 छटाक वो ले लें, 1 छटाक वो ले लें, और पीस कर इसको कैप्सूल भर लें, या चुटकी या चने के बराबर, या आधी चमची या चौथाई चमची, दिन में 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा इस्तेमाल करें। ये हल्दी और कचूर जब मिक्स होते हैं, इसकी ताकत अजीब बन जाती है, इसकी तासीर अजीब बन जाती है। और जो बीमारियां मैंने बताई हैं, इन बीमारियों में इसके अनोखे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर सिर्फ हल्दी को तेल में मिला के आप जहां चोट है, जहां दर्द है, जहां सर्दी है, वहां लगाएं। अच्छा, एक चीज बताएं, जिस दौर में खवातीन के मेकअप में हल्दी होती थी, उस दौर की मई सोनी नहीं होती थी, सेहतमंद नहीं होती थी, उसके बाल, उसका जिस्म, उसका खर्चा कुछ नहीं होता था। जिस दौर में हल्दी का उत्पन्न बनता था, हल्दी का लेप बनता था, और हल्दी स्किन के लिए, जल्द के लिए इस्तेमाल होती थी,
आपको इल्म है कि हल्दी जिस्म के लिए इस्तेमाल होती थी? बहुतों को पता ही नहीं है कि हल्दी जिल्द का लाजवाब इलाज है। हल्दी जिल्द का लाजवाब इलाज है। गला हुआ जख्म हो, गैंग्रीन, शुगर की वजह से, डॉक्टर कहते हैं इसको काट दें, उसमें आप हल्दी भर दें, पर हल्दी पीसते हुए एक चीज ज़हन में रखिएगा, वो चक्की ऐसी ना हो या वो हाउन दस्ता ऐसा ना हो जिसमें मरच पीसी हुई हो, सुर्ख मरच पीसी हुई हो। ये बात बहुत ज़हन में रखिएगा। अक्सर इसमें सुर्ख मरच पीसी होती है। सुर्ख मरच की थोड़ी सी भी इसमें अगर तासीर आ जाए, इसकी तासीर खत्म हो जाती है, इसका रिजल्ट उल्टा हो जाता है। इसमें आपको एहतियात करनी होगी। जख्म जैसा गला हुआ हो, हैरत बहुत गला हुआ जख्म हो, आप उसमें हल्दी भर दीजिए। चंद ही पट्टियों में जख्म आपको एहसास होगा कि अंदर से भरना शुरू हो गया है, और वो गला हुआ जख्म जिसको डॉक्टर कहते हैं हाथ काट दें, पांव काट दें, टांग काट दें, घुटना काट दें, पिंडली काट दें, उसके लिए लाजवाब चीज है। और यही हल्दी इस्तेमाल कराएं। और जिसको सांप काट दिया हो उसके लिए तो आखिरी चीज है ये हल्दी। मुसलसल उसको पिलाएं हल्दी, मुसलसल जिसको सांप काट गया हो। सांप के कांटे का बेहतरीन इलाज है सांप के कांटे का, और लाजवाब इलाज है यह सांप के कांटे का। अब डेंगू की तरफ मैं आपको लाता हूं और हेपेटाइटिस की तरफ लाता हूं। जिसको हेपेटाइटिस हो, कचूर और हल्दी हेपेटाइटिस का आंखों से बंद करके इलाज कर लें, आंखें बंद करके। डेंगू जिसमें प्लेटलेट्स बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं और बंदा जो है बस मौत के करीब पहुंच रहा है, उसको ये हल्दी का इस्तेमाल और कचूर का इस्तेमाल कराएं। हर घंटे घंटे के बाद चुटकी दें, चौथाई चम्मच दें, थोड़ी थोड़ी दूध के साथ दें, पानी के साथ दें, हर घंटे घंटे के बाद दीजिए। और हेपेटाइटिस के लिए तो जबरदस्त चीज है हल्दी और कचूर। कचूर की गांठें और हल्दी की गांठें, इनको पीस लें और पीसने के बाद इसको इस्तेमाल करें। अनोखी इसकी तासीर है, अनोखे फायदे। और सुनिए, जिस घर में ये आपने देखा ना कि घरों में प्लेटों में फूल रख देते हैं, खुश्क फूल रख देते हैं, उसमें कुछ पौधों की जड़ें होती हैं, कुछ शाखें होती हैं, कोई झाड़ियों को रंग दिया हुआ होता है, ये घरों में शो पीस के तौर पे रखते हैं। जिस घर में हल्दी की गांठें रख दे, बस ऐसे धो के साफ सुथरी करके उनकी पिलाहट सहर होनी चाहिए, ऐसे बेहतरीन रख दें हल्दी की गांठें, प्लेट में सजा के रख दें, उस घर में 5 चीजें मिलेंगी। क्यों? हर चीज एक असर छोड़ती है। एक खातून को 25 साल से सर का दर्द खत्म नहीं हो रहा था। एक हकीम था, हकीम वजीर चंद नंदा। ये गांधी का नाम असल करमचंद था, महात्मा गांधी का असल नाम करमचंद था, तो उसका नाम हकीम वजीर चंद नंदा था। उसके पास गए खातून, उसने ऐसे देखा, कहने लगे ये तेरे जो लौंग पहना हुआ है, ये कोका पहना हुआ है, लौंग कान नाक में, ये कितने अरसे से है? कहने लगे ये तो मेरी मां ने मुझे जहेज में दिया था। कह रहे शादी को कितना अरसा हुआ? जितना बीमारी का अरसा हुआ। 25 साल शादी को हो गए माई के। उसने कहा इसको उतार दे और 2 पूड़ियां दे दी, ये रात को एक पूड़ी आज रात खा ले, एक कल खा ले, तेरा दर्द खत्म हो जाएगा। और कहने लगे सच है, मैंने पूड़ियां ऐसी दी थी, कोई दवाई नहीं थी, इसकी तसल्ली के लिए। असल वो उसके अंदर एक पत्थर ऐसा था जिस पत्थर की लहरें, इनविजिबल रेज, गैर मरई शुआएं उसके जाके दिमाग के सेल्स को टकरा रही थी, जिसकी वजह से उसे दर्द होता था। जब मैंने वह पत्थर उतरवाया, मरीज ठीक हो गया। एक होता है दाना फरहंग, उंगली पे अगर उसको पहने, उंगली पे पहने,
مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب رحمتullah علیہ نے لکھا کہ میں روحانیت کا زیادہ قائل نہیں ہوں، ان چیزوں کا زیادہ قائل نہیں ہوں، لیکن مجھے گردے کا درد ہوا، مجھے حکیم عبداللہ صاحب رحمتullah علیہ نے وہ پتھر دیا، میں نے وہ پتھر پہنا، میرے گردے کا درد ختم ہو گیا۔ اب جب اتارتا ہوں مجھے گردے کا درد ہوتا ہے، پھر وہ پتھر پہنتا ہوں، گردے کا درد میرا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزوں کے ساتھ میں ابھی فوت ہوئے ہیں کہ فاروقیہ والے کون کیا نام مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمتullah علیہ کہ میں پاؤں کو تیل لگا رہا تھا، ان کے بیٹوں کو میں نے بتایا، میں نے کہا ان کے پوتے کو میں نے کہا یہ پاؤں کو ذرا مالش کیا کریں، بوڑھے بزرگ ہیں، تو ان کے پاؤں کو میں مالش کر رہا تھا، تو ان کے پاؤں کے چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی میں ایک چھلا تھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ غالباً تانبے کی تار کا چھلا تھا، انگلی کے اندر تھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ خود فرمانے لگے کہ غالباً 1970 یا اس کے بعد کی بات فرمانے لگے کہ مجھے بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، ٹارچر جب کیا گیا اس دور کی حکومت نے تو میرا گردہ ختم ہو گیا اور میرا گردہ نکال دیا گیا، اب میں ایک گردے پہ ہوں۔ کسی سیانے سمجھدار حکیم نے کہا تھا کہ یہ چھلا پہن لے، آپ کا یہ ایک گردہ محفوظ رہے گا، اور واقعی محفوظ رہا۔ پچھلے ہفتے ان کا وصال ہوا، کوئی 90 سال سے زیادہ کی عمر ہے، 91 سال کی زیادہ کی عمر میں وصال ہوا، وہ ایک گردہ چلتا رہا، اور اس ایک چھلے کی وجہ سے، اللہ کی امر کی وجہ سے۔ میں ان کے پاؤں کو تیل لگا رہا تھا اور وہ چھلا آ کے مجھے اٹکا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ میں تو حکیم تھا نا، میں اس چھوٹی سی چیز کو میں تو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ کہاں سے بات چلی تھی میری؟ کمرے میں رکھیں، ہاں وہ تیل والے جو پاؤں والے ہاتھ تھے میں نے چہرے پہ مل دیے، میں نے کہا مولا یہ پاؤں ساری عمر تیرے مدینے والے کے فرمان کو لے کے چلے، انشاءاللہ اس ہاتھوں میں ان پاؤں میں برکت ہوگی۔ اس میں نے ہاتھ وہ تیل والے اپنے چہرے پہ مل لیے، منہ پہ مل لیے، اس درویش کے قدموں والے۔ کمرے میں اگر وہ ہلدی کی گانٹھیں رکھیں، کمرے میں ہلدی کی گانٹھیں رکھیں، اس گھر میں 5 چیزوں کی اس کی تاثیر ہوگی، سن لیجئے، کیونکہ ہلدی نزلے کا بہترین، الرجی کا بہترین علاج ہے، نزلے کا بہترین علاج، جہاں چھینکوں کا طوفان ہو، الرجی ہو، اس کا لاجواب علاج ہے۔ ہر کمرے میں رکھیں، خوبصورت نظر آئیں گی، ٹیبل پہ رکھیں، خوبصورت نظر آتی ہیں، کیونکہ دنیا پھر سے فطرت کی طرف دوڑ پڑی ہے۔ پرانے دیگچے، پرانے مٹکے، پرانی چیزیں، ایسے نا پینٹ کو جگہ جگہ پھاڑنا، میں نے کہا تو پھاڑ، میرے مدینے والے کی سنت ادائیں آخر کون لائے گا؟ تو ہی لائے گا نا۔ پینٹ کو جگہ جگہ سے پھاڑا، پھر اس کو پیمند لگایا۔ میں نے کہا میرے صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء صالحین کی آخر یہ سنتیں زندہ کیسے ہوں گی؟ آل رسول کی یہ سنتیں زندہ ایسے ہوں گی، تیری پینٹ سے تو ہوں گی اور کیسے ہوں گی؟ تو اس کو فیشن بناتا ہے، پر یہ میری مدینے والے کی، آل و اصحاب کی یہ ادائیں ہیں۔ الرجی کا بہترین علاج ہے، الرجی کا دمے کا علاج ہے ہلدی، جس کو سردی کے موسم میں الرجی کا دمہ ہوتا ہو اور انہیلر اس کے ساتھ رہتا ہو، اور ساتھ طور پہ اسلام آباد کی فضاؤں میں جہاں پولن الرجی ہو اور الرجی کے ہسپتال بھر جاتے ہوں، وہاں ہلدی کا مسلسل استعمال، سردی ہے یا گرمی، لاجواب۔ جس گھر میں ہنڈیا میں ہلدی کا استعمال ہوتا ہے اس گھر میں جھگڑے کم ہوں گے۔ ہم بھی کیسے عجیب انسان ہیں، ایک گوشت گرم، ایک بندہ گرم، ادھر گرم مسالے، سوچے تو صحیح۔ حالانکہ ہمارے جو مسالے ہیں، ہمارے مسالے جو لاہور والوں کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے مسالے ہیں، پتہ کون سے ہیں؟ دھنیا، آلو بخارا، ہلدی، سفید زیرہ، دہی، سبز پودینہ اور سبز دھنیا اور بڑی الائچی
और छोटी इलायची, ये दालचीनी, लौंग, जायफल, जलवत्री, ये गर्म चीजें तो हमारे हैं ही नहीं बरसगीर के लिए, ये बरसगीर में दवाओं के लिए आती थी। ये हमारे मसालों का ऐसा नहीं है, सालन के लिए और बिरयानियों के लिए, इनके लिए ये तो है ही नहीं। आप यकीन जानिए, आज के बाद एक सालन खाएं और उसमें डालें दही, सुने फिर सुने, दही और धनिया सब्ज और खुश्क और सफेद जीरा और हल्दी और सब्ज धनिया और सब्ज पुदीना या खुश्क पुदीना और हल्की काली मिर्च और बड़ी इलायची और छोटी इलायची, ये मसाले मुख्तलिफ मिकदार के साथ जैसे जरूरत हो, ये मसाले बस यही हो। आप सालन में खा के देखें ब्लड प्रेशर कहां जाता है और टेंशन कहां जाती है। ब्लड प्रेशर सारा तो हमने डाला हुआ है बिरयानी और सालनों में, फिर कहते हैं ब्लड प्रेशर नहीं जाता। सारा तो उसमें डाला हुआ है हमने, ब्लड प्रेशर सारा तो उसमें डाला हुआ है, और फिर कहते हैं ब्लड प्रेशर नहीं जाता। और तेज पात, वो पत्ता होता है जो अंदर से निकलता है, वो तेज पात, एक ही दरख्त होता है, सुनो, उसी दरख्त का फल बन जाए तो जायफल बन जाता है, उसकी कली हो तो लौंग बन जाता है, उसके शगुफे हो तो जलवत्री बन जाती है, उसकी छाल हो तो दालचीनी बन जाती है। अब बताओ, आज तो हमारा हिकमत खाना खुल गया। सिर्फ मकसद दिल की तमन्ना यह है कि मखलूक के खुदा को नफा पहुंचे, बस ये एक तमन्ना है कि अल्लाह के बंदों को नफा पहुंचे। एक ही दरख्त चल रहा है, फल पक जाए, जायफल, शगुफे हो, कलियां हो तो क्या, जलवत्री, और उसकी कली अभी खुले ना, वो लौंग, और उसकी छाल दालचीनी, और उसके पत्ते तेजपात, जो पत्ते सालन वगैरह में डालते हैं, हंडिया में डालते हैं। हम भी कैसे अजीब व गरीब हैं। हल्दी को जिंदगी से निकाल दिया, कैंसर बढ़ गया। जिस नस्लों में मैं 1932-33 का एक रिसाला निकलता था मोची दरवाजे से, मैं उस रिसाले में पढ़ रहा था, और फिर मैंने 2015 में वो मैंने अभी रिकॉर्ड के लिए बाकायदा उठाया आपके दर्श के लिए, वो 1932 और 2015 एक तहकीक में पढ़ रहा था, और वही साइंस ने 2015 में बताई। सुने वो क्या तहकीक है कि जिस घर के सालन में नस्लों में हल्दी खत्म हो जाएगी, वहां कैंसर ज्यादा, सरतान ज्यादा हो जाएगा, कैंसर ज्यादा हो जाएगा, उनके मेदे खराब हो जाएंगे, उनके पेट बढ़ जाएंगे, उनकी हड्डियां सोख्ता हो जाएंगी। वो लिखा हुआ सोख्ता, थोड़ी सी चोट लगी कि हड्डी टूट जाएगी, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। जहां हल्दी का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा और मसालों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, हड्डियां खत्म हो जाएंगी, हड्डियां सोख्ता हो जाएंगी। फिर अगली बात लिखी थी, उनकी माएं मायूर बच्चे जनेंगी। आज हमारे चिल्ड्रन अस्पताल में जाके देखें और हमारे नस्लों में देखें कितने मायूर बच्चे आ रहे हैं, वो माएं। और अजीब बात है, मैंने एक जगह रिसर्च पढ़ी, फिर उसको तजर्बा किया, हल्दी ताबकारी का इलाज है। ये बड़ी गहरी बात कह गया हूं मैं, ताबकारी का इलाज है। हर मुल्क खुफिया तौर पे एटमी हमले, एटमी धमाके कर रहा एटमी ताकत बनने के लिए, और जब वो ताबकारी फैलती है पत्थरों को पिघला के रख देती है, मिट्टी को सुरमा बना देती है। इंसानों का क्या बनता होगा जो हवाओं और फजाओं में फैली हुई है। मैं गया इंडिया के बॉर्डर में, वहां पोखरान उनका एक शहर है, वहां उन्होंने ताबकारी, वहां एटमी धमाका किया। उसके शहर जो उसके साथ जो सहराई रहते हैं, वो जो बद्दू हैं जिनको हम रोहीले सहराई कहते हैं, मैंने उनमें अजीब व गरीब बीमारियां देखी। एकदम मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ये सेक्टर तो वही अंदाजा है, इसके साथ पोखरान लगता है। वहां मुझे रेंजर का एक बड़ा अफसर मिला, मैंने कहा इंडिया का कौन सा शहर इसके साथ लगता है, कहीं पोखरान है? करे वो सामने तो है पोखरान। आए मैं आपको वो कौन सी ओपी होती है, कॉपी होती, क्या बोला, ओपी में चल के दिखाता हूं, मैं तो है न चढ़ा, वहां है। उसके ताबकारी असरात उन रोहेलों को उसने खत्म कर दिया। वो आप हैरान होंगे, हल्दी ताबकारी इलाज, ताबकारी असरात का इलाज है। आप ताबकारी तौर पे इस वक्त हवाओं फजाओं में गैर महसूस तरीके से खिले हुए हैं, नजरें खत्म हो रही हैं,
اندھے ہو رہے ہیں، دماغ سوختہ ہو رہے ہیں، ہڈیاں ختم ہو رہی ہیں، جسم بڑھاپے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، وقت سے پہلے جوانیاں بڑھاپے ختم ہو رہی ہیں، عورتیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ ہلدی تابکاری کا علاج ہے۔ اس کا استعمال سالن کی شکل میں، دودھ میں ڈال کی شکل میں، ویسے پاؤڈر کی شکل میں، کسی ایسی پنجیریاں جیسے میں نے بتائی ہے ابھی، دابڑے جیسے یہ بنائے ہیں جس میں پستے وغیرہ، کسی بھی شکل میں ہلدی تازہ یا خشک، اس کا استعمال، اس کے رنگ میں تاثیر، اس کی خوشبو میں تاثیر، اس کو کمرے میں رکھیں اس کی تاثیر، اس کو گھر میں رکھیں اس کی تاثیر، اس کو کھائیں اس کی تاثیر، عجیب تاثیر ہے اس کی۔ اور سنیے، مغلیہ دور کے 400 سال 450 سال پرانے بنے بادشاہی قلعے کے محلات میں جو رنگ ہوتے ہیں، پینٹ ہوتے ہیں، ابھی تک کھڑے ہیں نہیں کھڑے؟ کھڑے ہیں۔ ان میں جو پیلا رنگ جہاں بھی آپ کو ملے گا اس کی بنیاد ہلدی ہے۔ پیلا رنگ، جڑی بوٹیوں سے وہ رنگ نکالتے تھے۔ اکبر بادشاہ گیا، محل بنوا رہا تھا، دیکھا تو ایک بندہ پتھر پہ رنگ رگڑ رہا، پھر جو 6-7 مہینے کے بعد گیا، دیکھا وہی بندہ پھر وہی پتھر پہ رنگ رگڑ رہا۔ اس نے کہا اس کو روز کی دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ اس نے کہا جی اتنی ملتی، اتنی مہنگی دہاڑی۔ اس نے بلایا حساب والے کو، 6 مہینے کے بعد پھر آیا ہوں میں وزٹ کے لیے، اس کا حساب بنا کتنے؟ اس نے کہا جی اتنے 100 یا اتنے 1000 جو بھی بنا، اتنے 100 بنا، اتنا بن گیا ہو، اس تو میرا ملک کا بجٹ ختم کر دے گا ظالم۔ اس نے کہا اچھا، اس نے جب سنا نا، جب کوئی سب اپنے سبجیکٹ میں سبجیکٹڈ ہوتا ہے تو اس میں نخرہ بھی ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی مان پاؤں تو اس رگڑائی کا کرشمہ دکھاؤں؟ اس نے کہا کیا؟ اس کے ہاتھوں میں جو رنگ لگا ہوا تھا اور پتھر کو رگڑتے ہوئے اس نے وہ 7 پڑے پانی کے برتن میں وہ ہاتھ دھوئے، اس پانی کا چینٹا اٹھا کے ایک پتھر پہ رکھا، پتھر کے پار تک سارا رنگ دار ہو گیا۔ پتھر کے اوپر جو ڈالا نا، پتھر کے نیچے تک وہ رنگ سارا کا سارا چلا گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، صدیاں اس رنگ کو ختم نہیں کر سکیں گی، میری محنت کا صلہ یہی ہے، پر میں اب جا رہا ہوں۔ رانی جندہ نے کھائی دال، رجیت سنگھ کی رانی جندہ نے دال کھائی نا، انہوں نے کہا دال بڑی لاجواب ہے۔ انہوں نے کہا دال کس نے پکائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ باورچی آیا ہے بڑا مانگا، اس نے کہا ہے کہ بھئی میں صرف دال ہی پکاتا ہوں۔ دال کون سا فن ہے؟ انہوں نے ایک دفعہ کھا کے دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ بس پر بات یہ ہے کہ اگر مجھے دال پکوانی ہے تو پھر مجھے یہ راشن دیں، اور وہ اتنا تھا کہ 1 مہینے کا اگر ایک مہینے کا شاہی دسترخوان چلے اتنا خرچہ وہ ایک دال کے لیے مانگتا تھا، ایک دال کے لیے۔ اس نے دال پکائی، رانی نے کہا اس سے کہو کل بھی، رجیت سنگھ کی چہیتی تھی، اس نے کہا کل بھی یہی دال پکائے۔ اس نے کل بھی دال پکائی، دال تھی بڑی مزیدار، بڑی کمال کی۔ اس نے کہا پھر بھی کل دال پکائے۔ رجیت سنگھ کو غصہ آیا، اس نے کہا یہ روز دال پک رہی ہے، اتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ اور اس نے کہا اس کو کہو بھاگ جائے یہاں سے، اس کو بھگا دیا۔ اس کو بڑی عجیب ہوئی، میری انسلٹ ہوئی۔ رانی نے دیکھا نا دسترخوان پہ کچھ اور چیز آئی ہوتی، اس نے کہا دال کہاں ہے؟ اس نے کہا جی مہاراج نے کہا ہے کہ اس کو بھگا دو۔ کہاں بھگا دو؟ مہاراج کی جرات ہے، اس کو بھگا دو۔ رجیت سنگھ جلدی کرو، اس کو واپس کرو۔ بندے دوڑائے پیچھے بھاگے بندے کے، بندہ کہاں گیا؟ دوڑتے 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 یہ آپ کے لاہور کے ساتھ بھائی پھیرو ہے، جہاں آ کے اس کو پکڑا، اور تیری مہربانی چل۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتا، میں تو نہیں جاتا، میری توہین ہوئی ہے، میری دال کی انہوں نے قدر ہی نہیں کی بادشاہ نے۔ انہوں نے کہا اس کی بیگم کہتی ہے، اس نے کہا چھوڑ میں نہیں اب جاتا۔ اسی کشمکش میں بندہ مارا گیا اور کہنے لگا یہ منہ اور مسور کی دال، یہ ہے کہانی، یہ منہ
और मसूर की दाल, तुम मसूर की दाल खाओगे, ये मुंह है, जाओ मैं नहीं पकाता। नस्लों से हल्दी खत्म हुई, नस्लों से। टायर में 1 पाउंड हवा कम होती है, गाड़ी अनबैलेंस होती है, कहते शाख खराब हो जाएंगे। मैंने बंदे से कहा, मैंने कहा क्या होता है? करीब सारी गाड़ी का कबाड़ा हो जाता है। ये तो पता चल जाता है, एक थोड़ी सी बू बदबू हमारी तबीयत को या निखार देती है या बुझा देती है। हमारी ग़िज़ाएं हमारी जिंदगी पर असर नहीं करती। हिटलर ने अजीब बात कही थी, मुझे 2 चीजें दे दो, मैं दुनिया में तुम्हें ऐसी नाकाबिल तस्वीर फौज दूंगा जो दुनिया में कभी फाते बनेगी, पीठ नहीं करेगी। एक वो माएं दे दो जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाए, मुझे वो माएं दे दो। हिटलर बोनापार्ट, वो माएं दे दो जो बच्चों को अपना दूध पिलाए, डब्बे वाला दूध। मेरा दूध आता नहीं, फितरत के निजाम के है ही खिलाफ, तेरा दूध क्यों नहीं आता? ये फितरत का निजाम है ही नहीं। वो माएं दो जो अब बच्चों को अपना दूध पिलाएं। और अजीब बात है, वो बच्चे दो जिनको फितरी ग़िज़ाओं पे पाला जाए। उस फितरी ग़िज़ाओं में हल्दी भी मौजूद है, फितरी ग़िज़ाओं पे पाला जाए। मुझे ऐसे बंदे दे दो, ऐसी माएं दे दो और ऐसे बच्चे दे दो, मैं इन बच्चों के साथ वो पूरी कायनात की नाकाबिल तस्वीर फौज बना दूंगा। और सुने, हल्दी का इस्तेमाल खिलाफत उस्मानिया में जब मेरे आका का रोज़ा अत्थर बना है ना, आपको इल्म है ये कैसे बना? गुंबद खिजरा, ये पहले गुंबद अबियज होता था, सफेद गुंबद होता था, फिर इसको सब्ज गुंबद, ये सब्ज गुंबद मौजूदा तकरीबन 650 साल पुराना है। इसकी हिस्ट्री अगर देखनी है तो मदीना मुनव्वरा के वो अजायब घर में सारा निजाम पूरा तफसीरों के हवालों के साथ, मजबूत हवालों के साथ मौजूद है। इसके लिए उस दौर के बादशाह का कमाल देखें, उन्होंने बाकायदा ऐसी माओं का इंतखाब किया जिनका पेट अच्छा है। पेट का बड़ा असर होता है। गाय का दूध दोने से पहले उसकी मां का दूध दोता है जो समझदार होता है, फिर उसकी नानी का दूध दोता है। दूध देते हुए लाते तो नहीं मारती, टांगे नहीं मारती, अगर ये मारती उसकी मां भी मारेगी। तो प्यार के नाम पे अपनी मिजाज खुद बना लेता है। अरे ये कहानी अपनी अम्मा को दे, अम्मा देखभाल के मेरे शादी कर। फिर जब प्यार के नाम पे शादियां करता है फिर कहता है कि ये हो गया वो हो गया। अपने इंतखाब खुद करता है।